हरी हरी बोल। वाह, हरि नाम संकीर्तन की जय। राधिका गंधर्विका सिंगर की जय। बर्थडे बॉय की जय। हरे कृष्णा। जैसे मैं गिरा हुआ वैसे ये मूर्ति हो गया हो गया हो गया। हाँ बेटा ये हो गया बेटा। सतगुरु बाबा आपको सॉन्ग दे रहा हूँ, मसाया मिलेनियम। वो गाते हैं, ठीक है? ठीक है, सब मिलके गाएंगे, ठीक है जी? सबको भेज दो जी साहब। सब किस किसने सुना हो ये सॉन्ग? श्री प्रभुपाद दी मसाया मिलेनियम। पीछे बालकनी सीट में किसने सुना हुआ है? ओके। नीचे रियर वाले नॉन चिल अभी नॉन चिल ना। सबको मिल गया सॉन्ग? किसी को मिल गया सॉन्ग? और किसका नंबर है? वैष्णव रायपुर का नंबर है, उनको फोटो देता हूँ। और किसका नंबर है मेरे पास भाई यहाँ पर? आपने भेज दिया? ठीक है, मैं देखा, मैं भी किसको भेज सकता हूँ। विष्णु का नंबर है पास, यस।
हो गया? किस किसको मिल गया जी? बड़े कम लोगों को मिला यार। हैं जी? हाँ भेजो भेजो, यस भेजो भेजो, अच्छी चीज फैलाओ। चलो जी गाना शुरू करते हैं फिर। Holy name you gave for meditation. गाओ। समाधि में भाई होगा तो समाधि में। Holy name you gave for meditation. Holy name you gave for meditation. Your guidance was solid fortification. Your guidance was solid fortification. Easy to understand, clear presentation. Easy to understand, clear presentation. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. 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 We are not the body, we are eternal soul. We are not the body, we are eternal soul. Krishna is supreme Lord, our heart should behold. Lord, our hearts should behold. You taught this lovely science in your books and fold. What is lovely signs in your books and books? Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Prabhupada, Messiah of Millennium. You give to the belly the sanctified food. Sandesh kachoris were simply wonderful. As his corn bullets, you give gulab jamun. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. We were in sorrows with uncontrolled mind. Your infinite forgiveness with heart so kind. Saving from the darkness the very mankind. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Preaching pure message, you were so fearless. Hippies and the world were living life so hopeless.
Krishna consciousness. As a solution, you give Krishna consciousness. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Drowning in the ocean of propensities to sin. Addicted to the pleasures, connected to the skin. Your mercy in the battle was bound to win. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. You made us realize preaching is essence. Purity is the force to sustain and advance. Utility is the principle, makes so much sense. Utility is the principle, makes so much sense. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. You gave Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda super duper merciful. Vrindavan Puri and Sri Dhamayapur. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. You distributed mercy to everyone. Kartal, Mridanga and harmonium. Destroying Kali Yuga's pandemonium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Thank you, thank you, thank you very much. From the core of our hearts, thank you very much. Zillions of times, thank you very much. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium.
Messiah of millennium, Messiah of millennium. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada ki Messiah Millennium Shri Prabhupada ki Hare Krishna. Okay, सब तैयार कहानियों के लिए? हरी बोल। क्या सबसे एंथुसियास्ट यही है क्योंकि बड़े बड़े तात्पर्य तो यही देता है। नाइस, ठीक है जी। सो ये स्टोरी जो आती है बाइबल में आती है, ओल्ड टेस्टामेंट में आती है। इट इज ऑफ सैमसन एंड डिलियाला। सो अ वेरी पावरफुल वॉरियर फ्रॉम पैलेस्टीन, उसका नाम था सैमसन। और इसको पैलेस्टीनियन ने प्राप्त किया था भगवान से ताकि ये पैलेस्टीनियंस की रक्षा कर सके। एक प्रांत के लोग होते हैं, ठीक है। तो एंड ही वाज सो पावरफुल एट टाइम ही कुड फाइट विद 1000 सोल्जर्स अलोन। ऐसे संभाजी महाराज है ना, एक साथ 5000 लोगों को निपटा सकते थे, ऐसे ये भी 1000 लोगों को निपटा सकता था। वेरी पावरफुल। तो इससे कितना नुकसान हो गया अपोजिट पार्टी का, क्या करें भाई हम। सो क्या किया जाए, कैसे कमजोरी पता लगाया जाए, व्हाट इज द वीकनेस, व्हाट इज द वीकनेस ऑफ दिस पर्सन सैमसन, क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने पूरे स्टेट की सबसे सुंदर एक लड़की को चुना, हु वाज वेरी एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ सेडक्शन। उसने मिलना शुरू किया सैमसन से, और सैमसन जो है जब से मिलना शुरू किया, सैमसन also gave his heart to Deliala. And she was very beautiful, very gorgeous, very humble, very down to earth. ऐसी थी वो। And he was very powerful, epitome of masculine qualities, Samson. तो एक समय इसने डिलियाला ने सैमसन को अच्छे से दारू वारू पिलाई अच्छे से और पूरा टुन कर दिया इसको। उससे पूछा तुम्हें इतनी क्वालिटीज हैं, यू आर फुल ऑफ गुड क्वालिटीज, पर कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना विच इज योर वीकनेस। व्हाट इज योर वीकनेस? तो इसने कहा वेल मेरी वीकनेस ये है कि अगर ये नारियल के ऊपर जो होते ना रेशे होते हैं, उसे अगर उसकी बनी हुई रस्सी से अगर मेरे हाथों को बांध दिया था ना, तो मैं फिर खोल नहीं पाता उसको। अच्छा ठीक है, ओके। अब इसने क्या किया, रस्सी वगैरह बंदोबस्त किया और रस्सी बांध दी। रस्सी बांध दी तो फिर हुआ कि जब अटैक हुआ सोल्जर्स का, जैसे सोल्जर्स अटैक हुआ ऐसे छुड़ाया हाथ, ये धूमधाम करके पीट पाट कर भगा दिया। तो डांट लगा, ये डिलियाला हो गया था, तूने क्या पता लगाया वाला, झूठ बोला उसने तेरे को। क्या है ये कि वो रेशे से जो होते हैं, नाल के रेशे से रस्सी बंदी होगी, उससे बन जाएगा तो पिट जाएगा। हम पिटे हैं, पता लगा उसकी क्या कमजोरी है। अगली बार फिर से उसने ट्राई किया, उससे पूछा कि ओके सो व्हाट इज योर वीकनेस, क्या कमी है तुम्हारे अंदर, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। तो उसने बताया कि अगर रात के 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे अगर अटैक होता है तो ना, तो फिर मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा। तो ना एग्जैक्ट 12 बजे अटैक हुआ उसके ऊपर, वो उठ खड़ा हुआ, उसने पीट पाट करके सबको भगा दिया। डिलियाला को इतनी डांट पड़ी, उसने कहा अगली बार अगर फेलियर हुआ उसको नहीं मारेगा, तेरे को मारेंगे। इस बार डिलियाला ने पूरी जान लगा दी, उसको पूरा हिप्नोटाइज कर दिया अच्छे से। उसे पूछा व्हाट इज योर वीकनेस सैमसन, जस्ट फॉर माय लव प्लीज काइंडली शेयर। उसने कहा वेल मेरी शक्ति मेरे बालों में, एक्चुअली मेरे अगर बाल हेडशेप हो जाए और शिखा भी ना रहे अगर उसमें, तो फिर खलास। और वाकई में ऐसा ही हुआ। तो जब बहुत बेहोश था तो डिलियाला उस तरह लेकर के आई थी और इसका फिर मुस्तफा कर दिया अच्छे से। और फिर जब इस पर अटैक हुआ देन ही वाज कॉट। अब पकड़ा तो गया ये। अब जितने इसके लोग थे दे वर वेरी मच अफ्रेड कि ये हमारा सैमसन को पकड़ा गया। एंड ही वाज सो गिल्टी कि मैंने क्या किया। आई वाज ब्लेस्ड बाय गॉड इन सच अ स्पेशल वे। पर मैं एक चीप थ्रिल के पीछे, चीप आकर्षण के पीछे मैंने कितनी बड़ी चीज मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दी, मैंने क्या किया। सो ही वाज रियली कॉट, नाउ ही वाज एनकेज्ड, और उसके हाथ वगैरह बांधे हुए हैं। सो एट दैट टाइम ही सेड, ओ लॉर्ड प्लीज गिव मी माय स्ट्रेंथ बैक, ओनली वंस गिव मी माय स्ट्रेंथ।
तो भगवान ने फिर उसको शक्ति दी और फिर उसने जंजीरों को तोड़ा, साथ वो पूरा जो इम्प्रिजनमेंट थी उसको भी तोड़ डाला, एंड ही डाइड इन दैट इम्प्रिजनमेंट इटसेल्फ। और उसमें कई सारे जो सोल्जर्स है अपोजिंग पार्टी के वो ही मारे गए। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डिलियाला। सो दिल्ली की नहीं थी वो, सिर्फ नाम ऐसा था उसका, डिलियाला। तो इससे हम क्या क्या सीखते हैं बताओ बालक? मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पूछेंगे बेटा आज, जब सारी स्टोरी हो जाएंगी। हाँ चलो पूछो, क्या सवाल तुम्हारा? अगर सैमसंग के दोबारा बाल उग जाते उसके पास पावर आ जाती? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल था, पर रोज उसके सर पे तेजाब मारा जाता था, इसलिए बाल उग नहीं पा रहे थे उसके। क्या करा जाता था? हार्पिक आता ना, हार्पिक, वो उससे उसकी चंपी होती थी रोज। है बेटा? क्या लगाते बेटा? हाँ नहीं मरा नहीं बेटा, मरा नहीं, उससे सिर्फ बाल धुलते थे उसके। हाँ बताओ जी, क्या क्या सीखा इससे स्टोरी से? कौन बताएगा जी? अपनी वीकनेसेस किसी को नहीं बतानी चाहिए। अच्छा गुरु को बतानी चाहिए? अगर गुरु ही हमारे ओपोनेंट का टीम में हो, अगर गुरु सामने वाली टीम में जगह शामिल हो चुके हैं तो फिर गुरु का क्या होगा? तो वो अर्जुन के ग्रैंडफादर भी। हाँ अर्जुन ग्रैंडफादर सैमसन ही तो हुए थे। नहीं उनके जो गुरु थे, हाँ उनके गुरु उनके ऑपोजिट टीम थे, वो बताएंगे क्या? क्या बताएंगे आपको? वीकनेस? क्या वीकनेस है अर्जुन की? वो तो मुझे भी नहीं पता। गुरु को सारी वीकनेस पता होती है सर, और क्या? हाँ जी, और बताओ जी, कौन बताएगा? यस, हम जल्दी जल्दी से मटेरियल नेचर के अंदर घुस जाते हम जल्दी जल्दी से मटेरियल नेचर के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, और आइए हुजूर, आप ही का इंतजार था, आइए। देर हुई आने में आपको, शुक्र है फिर भी आए। तो We get controlled by our senses. we get controlled by our senses, very good। और ये बहुत ही important lesson है for a preacher, especially for a preacher there is one lesson। ऐसा क्या खास होता है प्रीचर में, और प्रीचर अल्टीमेटली कैसे अपनी शक्ति को खो देता है? अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, खुशामदीद। अल्लाह की रहमत हमें बनी रहे, और उससे ज्यादा अल्लाह देनी शक्ति, अल्लाह को देने वाली शक्ति, अल्लाह देनी शक्ति, राधा रानी। हाँ जी, यस। एक प्रीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इसके अंदर। You should not live like a creature, you should live like a preacher। बताओ जी, कहानी समझ में नहीं आई? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी क्या कहानी? ना पता नहीं क्या हुआ, किसके चाचू ने किसके फूफा भाभी के साथ क्या किया, हमें क्या पता। बताओ जी, यस, क्या है स्टोरी का लेसन? प्रीचर के लिए बड़ा अच्छा लेसन है। जोर लगाओ, जोर लगाओ, अपने घुटने पे जोर लगाओ। एडी बना रहे, एडी बना रहे। प्लैंटर फेशियालिटीज हो रहा था ना। हाँ जी, है जी, हाँ हाँ डिलियाना, हाँ 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 बिल्कुल। तो जो सुन रही थी वही आगे बता रही थी। तो यानी कि वो चाइनीज विस्पर का शिकार नहीं हुई। अद्भुत, ये लेसन तो हमने भी नहीं समझा। कमाल ही हो गया भाई, बहुत जीनियस है। हाँ बोलो बेटा, यस। कभी-कभी सैमसंग भी स्कैम हो जाता है। क्या चीज? कभी-कभी सैमसंग भी स्कैम। सही बात है, कोई सैमसंग भी हैंग हो सकता है, एप्पल हैंग हो सकता है, सैमसंग स्कैम, कौन सा स्कैम? वो पकड़ा गया स्कैम, हाँ। तो सैमसंग के साथ स्कैम हो गया। हाँ सही बात है। तो भी एप्पल एंड सैमसंग। हाँ सैमसंग हो एप्पल हो, हैंग तो कोई भी हो सकता है। सही बात। और हाँ पाइनएप्पल बहुत जरूरी है। प्रीचर के लिए जो आप कह रहे हैं कि मतलब वी शुड कीप ट्राइंग, अगर हम किसी से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हाँ वी शुड कीप ट्राइंग। अगर लड़की फंसती है, फंस जाए अच्छा है, नहीं फंसती कीप ट्राइंग। प्रीचर के लिए हाँ जी, यस। तो भगवान चांस देते हैं, तो गलतियां करते रहो और चांस मांगते रहो। यस, अद्भुत, कमाल करते हैं, हिला के रखते हैं भाई, बहुत बढ़िया। और प्रीचर के लिए
हाँ प्रीचर के लिए, हाँ जी yes. नहीं पता। ये बहुत बड़े लेसन है। ठीक है, ओके, सो प्रीचर इज ब्लेस्ड बाय गॉड बट ही शुड बी अवेयर अबाउट टेम्पटेशंस इन लाइफ। यस, नहीं तो अगर टेम्पटेशंस हैं अदरवाइज दे आर लाइक कर्स फॉर हिम, दे कैन डिस्ट्रॉय हिम। तो इसलिए ही शुड बी वेरी कॉशियस अगेंस्ट चीप थ्रिल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर। तो अगली स्टोरी फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रीपाद रामानुचार्य। रामानुचार्य जो है वैसे एक ही वाज अ स्टूडेंट, और इनके जो टीचर थे उनका नाम था यादव प्रकाश। और यादव प्रकाश ही वाज अद्वैतवादी, निराकारवादी, और रामानुचार्य ही इज अ प्योर डिवोटी। अब बल्कि ये जो विवेचनाएं दिया करते थे, और ये रामानुचार्य कहते नहीं नहीं इसकी विवेचना ये नहीं होगी, इसकी विवेचना तो ये होनी चाहिए असल में। जैसे कि एक श्लोक आया कि ना भगवान के जो हाथ है वो पिंक है, तो कैसे है? तो फिर यादव प्रकाश ने दिया जैसे कि बंदर का पिछवाड़ा पिंक होता है, बिल्कुल वैसे ही भगवान के हाथ और पांव भी पिंक है। तो रामानुचार्य ने कहा नहीं नहीं एक्चुअली ये इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये जैसे कि ना जो लोटस पिंक होता है उस प्रकार से भगवान के हाथ पिंक है, इसका ये मीनिंग होगा। और ये जो सुना ना तो सबने कहा ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से लोगों का यादव प्रकाश से फेथ कम हो रहा था और स्टूडेंट क्यों हो जाता, फेथ जा रहा था। तो यादव प्रकाश ना बहुत भुनभुनाया हुआ था। सो ही मेड अ कॉन्स्पिरेसी आल्सो टू किल रामानुचार्य, बट समहाउ उनके कजन थे, मासी के बेटे थे गोविंद, उनकी वजह से वो बच तो गए थे। हालांकि तो फाइनली वो अलग हो गए कि भाई मैं ये तो मेरे टीचर ने मेरे को मारने के तुले हुए हैं। तो आगे जाकर हम सब जानते हैं रामानुचार्य बिकेम द आचार्य, वेरी पावरफुल आचार्य। नहीं मैथ्स के नहीं मेरे बच्चे, फिलॉसफी के, स्पिरिचुअलिटी के। सो अब ना यादव प्रकाश जो थे ना बड़े बेचैन रहते थे। उनकी माँ ने बोला तू बेचैन रहता है यादव प्रकाश, जा अपने स्टूडेंट के पास, रामानुचार्य के पास, जब तक तू माफी नहीं मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा नहीं, तब तक तेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी, ताकता रह जाएगा तू इस तरह से। राम क्यों जाए, स्टूडेंट रहा है मेरा वो, मैं अपने स्टूडेंट के आगे झुकूं, मैं बोलूं तू सही था मैं गलत था, कैसे बोल दूं मैं ऐसे? आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है, there's something known as self esteem, self respect। तो माँ ने कहा बेटा तू तो तड़पता रहे, तू तेरे को भी पता है तूने गलती की हुई है, तेरे को जाना चाहिए और तेरे को माफी मांगनी चाहिए। हम ना मांग रहे, हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तेरे को पता है तूने गलती की है। यादव प्रकाश पर मानता नहीं था। बीच में ऐसा हुआ कि ना जो एक राजा था उसकी जो बेटी थी राजकुमारी, उसको चढ़ा था ब्रह्म राक्षस, और ब्रह्म राक्षस बहुत पावरफुल था। कई सारे एग्जॉर्सिस्ट आए, उन्हें फाफा फूफू जय काली कलकत्ते वाली बनारस वाली सब कर ले, दिल्ली वाली, लेकिन कुछ काम नहीं करता, फाफा फूफू सब हो गया। यादव प्रकाश को बुलाया गया। तो जितने भी अब तक आए थे ना, ये जो ब्रह्म राक्षस था जो कि राजकुमारी के अंदर था, ये बल्कि जहाँ फाफा फूफू होती तो वो खा लेता था वो, और खा करके उसके ऊपर थूक देता था, कहते ये ले तेरा फाफा फूफू। तो जय काली कलकत्ते तेरा बच्चा जय काली फू। तो एग्जॉर्सिस्ट की तो बहुत बड़ी बेइज्जती है भाई ये तो, मतलब फाफा फूफू को कोई खा जाए, मतलब उसके बाद भूत तड़प नहीं ना, उसके लिए तो मतलब ये फीस्ट है क्या ये? उसके बाद फिर उसकी पोल पट्टी होता था, कहता तू ओझा साले रोज रात को दारू पीता है तू, अपनी पत्नी को मारता है तू, तूने उसको पैसा भी खाया है ना? तो जितने भी ओझा आते थे उनकी बोल पट्टी खोल रहा होता था ये। तो यादव प्रकाश भी आया, उसने भी फाफा फूफू जब किया, ये खा लिया उसने, यादव प्रकाश तूने रामानुचार्य को मारने की हिम्मत की थी, तू कितना कमीना आदमी है रे। यादव प्रकाश की बेइज्जती हुई और वो भी निकलने से कहा अरे यादव प्रकाश भी, उसके मंत्र भी काम नहीं किए ब्रह्म राक्षस के ऊपर। तो राजा ने पूछ लिया भाई ब्रह्म राक्षस तू ही बता दे तेरा इलाज कौन करेगा? मेरा इलाज तो रामानुजाचार्य ही करेगा। जब तक उसके चरण कमल मेरे सर पे नहीं रखे जाएंगे तब तक मैं इस राजकुमारी को छोड़ूंगा नहीं।
फाइनली श्रीमद रामानुजाचार्य आए और फिर राजकुमारी ने प्रणाम किया। उसके अंदर कौन है? ब्रह्म राक्षस। और फिर जैसे ही श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने उसके अपने चरणों को उसके सर पे रखा, तुरंत उस ब्रह्म राक्षस ने उस राजकुमारी को छोड़ दिया और ब्रह्म राक्षस को फिर वहां पर मुक्ति प्राप्त हुई और फिर डिवाइन बॉडी लेकर के वो निकल पड़ा। ऐसा इस तरह से उसका कल्याण हुआ। तो इस स्टोरी में क्या क्या लेसन्स हैं जी? प्रभु जी, जो ये वाला इंसिडेंट हुआ था जब उन्होंने बंदर के वैसे कंपेयर किया तो एक्चुअली में रामानुजाचार्य को बहुत दुख हुआ था, बट उन्होंने उसे अपोज किया। तो उससे मतलब ऐसा सुना है कि ऐसा कि अगर हमारे कोई आचार्य है लेकिन फिर भी वो अगर भगवान का कुछ ऐसे करे तो हम उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। अगर आचार्य आचार्य बोल रहे नहीं, हैं तो लेकिन अगर कोई भगवान के लिए ऐसे बोल रहा है, ऐसा मैंने सुना है किसी हाँ, तो भगवान के लिए कुछ बोल रहा है तो फिर हम उसे करेक्ट कर सकते बिल्कुल तो करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और क्या लेसन है इसमें? हाँ जी, ह्यूमिलिटी। यस, रामानुजाचार्य जी को हम्बल बनना चाहिए था। हाँ, अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। When we are wrong, we should admit that yes, I am wrong. ये नहीं बोलना चाहिए हम क्यों झुके, हम ही क्यों झुके, वो क्यों नहीं झुक सकता? वो क्यों नहीं झुक, हर बार हम ही क्यों झुके यार? हमारे को सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारे को ईगो, हमारी भी सेल्फ एस्टीम है। ईगो बोले तो अच्छा नहीं लगता ना बोलने में, अच्छे शब्दों में इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी भी सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, हाँ जी। और भी है। बहुत सारे लेसन है इसके अंदर। भूत का उद्धार हो गया रामानुजाचार्य जी के। बिल्कुल जी, भूत का उद्धार हो गया। सो इस्कॉन भूत फोरम किसने खोली थी? रामानुजाचार्य जी ने। हमारे यहाँ सिर्फ यूथ फोरम है, भूत फोरम ने क्यों खोला नहीं, पर भूत फोरम कैसे खोला? रामानुजाचार्य जी। और जी, one moon is sufficient for eclipse। हाँ जी, Instead of many stars, so Ramanujacharya, like a great Vaishnav saint, is enough instead of many Mayavadis or. चलो स्वीकार कर लेते हैं। हाँ बोलो बेटिया। हाँ, वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम मायावादी, हमारे डिसाइपल वैष्णव। तो लेकिन वैष्णव की निंदा तो की नहीं, सिर्फ मर्डर का अटेम्प्ट तो किया था, पर निंदा कभी की उन्होंने? नेवर। यादव प्रकाश ने कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया रामानुजाचार्य जी को। He just attempted murder, that's it। हाँ, मैंने बुरा सोचा, थोड़ा बहुत उनको मर्डर करने का प्रयास किया, that's it। और ज्यादा बड़ा कुछ नहीं किया। Just attempted murder ना, किसी को ऐसे नदी में डुबो के मारना, that's it। हाँ, और सफल भी नहीं हो पाया ना, so that's why हमें तो पूरी सांत्वना देनी चाहिए यादव प्रकाश को कि उसका मर्डर अटेम्प्ट फेल हुआ है कि नहीं। We should be very kind, compassionate towards। करते रहना चाहिए था। ये अपना बात सबसे इम्पोर्टेंट लेसन तो ये, अगर मर्डर अटेम्प्ट में आप फेल हुए हो तो 12वां अटेम्प्ट करना चाहिए। शाबाश मेरे पुत्र। देखो गौरांग कितना खुश हो गया, बर्थडे बॉय सो हैप्पी, कितने बढ़िया लेसन निकल के आ रहे हैं। हाँ जी, A Vaishnava should be unlimited forgive। हाँ, अनलिमिटेडली फॉरगिविंग होना चाहिए वैष्णव को। जब उन्हें ये पता चला, गोविंद से उन्हें ये पता चला कि वो उन्हें मरवाना चाहते हैं, तब भी उन्होंने जाके कुछ रिटेलिएट नहीं किया था, एंड उन्होंने तुरंत उन्हें माफ कर दिया। Yes. So finally, Yadav Prakash he came to Ramanujacharya. He was so disturbed. उसकी माँ ने बोला तेरे कभी चैन नहीं मिलेगा। So finally आया और मिला रामानुजाचार्य से, और रामानुजाचार्य ने आकर वो वेलकम किया, उनको बिठाया और उनका आओ भगत की, उनकी आरती उतारी कि हाँ मेरे टीचर रहे, जो कि जानते हैं कि मेरे को मारने वाले, मेरे को अटेम्प्ट टू मर्डर किसने किया? इसी व्यक्ति ने किया। उन्होंने कहा देखिए शास्त्र, उन्होंने पूछा कि ना, उन्होंने बोला यादव प्रकाश ने कि मेरी माँ ने बोला कि मुझको शास्त्र आपसे सीखने चाहिए। तो मैं क्या सिखाऊंगा? ये मेरा डिसाइपल है कुरेश, ये बड़ा स्कॉलरली है, इनसे आपको सीख सकते हो। एंड देन ही लर्न शास्त्रास फ्रॉम कुरेश। और उसके बाद से रामानुजाचार्य ने उनको एक सेवा दी कि आप एक बुक लिखो ऑन दी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मर्यादा ऑफ सन्यासी। सो संन्यास समुच्चय ऐसे करके फिर ग्रंथ लिखा, एंड इन दिस वे यादव प्रकाश वाज आल्सो डेलिवर्ड। और बताइए और क्या क्या लेसन है? हाँ जी बताइए माता जी। यस,
यस बच्चों से भी सीखते हैं, बिल्कुल सी बात है। यस चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो या बच्चे हो या यस बिल्कुल सही बात है। और प्रभु जी उनकी माँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारा बेटा ही मतलब वी शुड नॉट बी पार्शियल, अगर कोई चीज़ सही है तो हम अपने बेटे को बोलेंगे जाओ अपने आप को ठीक करो। हाँ, गलत चीज़ को हम गलत ही कहें। यहाँ गलत चीज को गलत बोले, भले मेरे बेटे ने किया। वेरी गुड। और बालकनी सीट वाले मौन व्रत, हाँ और क्या सीखते हैं हम लोग? हम सीखते हैं रामाचार्य जी से दैट ही आल्सो कैरीड ग्रज टुवर्ड्स यादव प्रकाश। तो इससे अगर कोई हमसे बुरा करे हमें भी थोड़ा ग्रज तो रखना नहीं चाहिए। He had no grudge। सामने वाले ने कितना नेगेटिव किया हुआ है, लेकिन हम सामने वाले के नेगेटिव के बाद नेगेटिव रखते हैं अपने मन के अंदर। बस बस रहने दो जी, आपने अटेम्प्ट टू मर्डर तो किया था ना, बचपन की बात ही सही, लेकिन बात तो है। ऐसे कैसे बुला दे, कैसे? यस हम ग्रज रखते हैं, अंदर लावा रखते हैं, माफ नहीं कर पाते। ऐसा होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। यस अगली स्टोरी। ठीक। तो स्वर्ग में एक बहुत ही शालीन और बड़ी संस्कारी एक अप्सरा रहा करती, उसका नाम है पुंजकस्तरी। राक्षस। नहीं मेरे बच्चे, स्वर्ग में राक्षस कहाँ से आ जाएगा? हाँ जी यस। तो पुंजकस्तरी जो थी बहुत ही सात्विक, बहुत ही शालीन। तो एक समय ऐसा वो दुर्वासा मुनि जब वहां पर आए यज्ञ इत्यादि करने के लिए। अब दुर्वासा मुनि बड़ा सेंसिटिव केस है जी, कब किस बात पे श्राप दे दे कुछ नहीं पता। तो इसलिए और मुझे यज्ञ करना था, तो फिर उन्होंने तो इंद्र ने सोचा कि एक ऐसी वैदिक स्त्री को ही रेकमेंड करते हैं जो थोड़ा अकल रखती है। हम तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, आरंभा जाएगी गड़बड़ करेगी, उर्वशी जाएगी गड़बड़ी करेगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसलिए ना पुंजकस्तरी अच्छी है, उसको भेज देते। तो पुंजकस्तरी को भेजा ताकि आप सेवा करो दुर्वासा मुनि की। दुर्वासा मुनि अब जो है यज्ञ करना चाह, अब ये क्या, शी वाज वेरी एंथुसियास्टिक, मेरे को इस साधु की सेवा मिली है, वाओ आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी यार, आई एम सो लकी। अब जो पानी की मटकी है लेके भर के लेके आती है तो ना उत्साहपूर्वक लेके आती है मटकी, और लेके आओ, तो ना गिराती ज्यादा है और लेके कमाती है। तो दुर्वासा मुनि ने कहा तुम्हारा ना हरकतें बंदरिया जैसी हैं, तुमको तो बंदरिया ही बन जाना चाहिए। श्राप दे दिया है जी। अब श्राप तो देते, उन्होंने माफी मांगी कि गलती हो गई, मैंने उत्साह में ऐसा कर दिया। तो दुर्वासा मुनि ने कहा हाँ उत्साह में ही कर रही थी, इंटेंशन तो अच्छी थी, मैंने वैसे ही टेंशन दे दी उसको। तो फिर दुर्वासा मुनि ने कहा हाँ थोड़ा ज्यादा ही दे दिया मैंने, कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं ना लोग, तो दे दिया श्राप। पर उनका ये विनम्र भाव देख करके उन्होंने कहा लेकिन मैं तुमको साथ ही वरदान भी देता हूँ, लेकिन इतने सारी बात तुम वापस भी आ जाओगे और तुमको बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि भगवान का पार्षद होगी। ये बड़ा अच्छा आशीर्वाद मिल गया। इसी प्रकार से एक और उससे कुछ गलती हुई थी, अगेन दैट पर्सन कर्स्ड हर दैट यू शुड बिकम मंकी, अशी मंकी। तो इस प्रकार से इनका फिर जन्म हो गया पृथ्वी पे एज अंजना। अब अंजना के रूप में आई है, तो अब ये तपस्या कर रही थी। तपस्या करे तो एक राक्षस ने देख लिया, कहते हैं बड़ी सोहनी कुड़ी है। अरे मैडम, अरे ओ मैडम, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। तो अंजना जो थी वहां से भागी। अब भागी तो देखा वहां कुछ संत मुनि थे, वो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। उनको बोला मेरी हेल्प करिए, मैं तो ध्यान लगा रही थी पर इसका ध्यान मेरे में लगा हुआ है, मैं क्या करूं, प्लीज सेव मी। तो संत मुनि थे, उन्होंने कहा यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि इस राक्षस को संभाल सकता है, उसका नाम केसरी करके। तो केसरी का आह्वान किया, तो केसरी नाम क्या है, ही वाज वानर राज, वेरी पावरफुल। और फिर उसने इस राक्षस के साथ युद्ध करना शुरू किया। केसरी ने युद्ध करना शुरू किया। अब युद्ध कर रहे हैं तो भले इसके मुंह से खून निकल रहा है इस राक्षस के, लेकिन फिर भी ना हार नहीं रहा है। तो फिर अंजना ने पूछा इसको कैसे हराएंगे, केसरी जी लड़ रहे हैं लेकिन ये तो हारने का नाम ही ले रहा है, मुंह से उल्टियां करे जा रहा है बड़बड़, लेकिन फिर भी हारने का नाम नहीं रहा, क्या किया जाए इसका। तो एक ऋषि ने कहा कि मैं ध्यान लगाता हूँ, पता लगाता हूँ। ओ इसकी कमजोरी है, ये अपने खून से ही मर सकता है जब। तो उसका जहां जहां खून गिरा हुआ था तो एक तीर लिया, वो तीर को उसमें सोख किया, उसे खून में सोख किया और तीर जो है चलाया केसरी की ओर और साथ ही धनुष भी फेंका।
तो दोनों को ही केसरी ने पकड़ लिया और वो लेकर के जब चलाया तो फिर ये राक्षस मारा गया। अब राक्षस मर गया। अब सबने मिलकर के फिर आशीर्वाद दिया दोनों के, दोनों का विवाह कराते हैं और आप दोनों को एक बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। वेरी गुड, आशीर्वाद मिल गया जी। और फिर आपको पुत्र की प्राप्ति कहाँ होगी? मतंग ऋषि के आश्रम में। अच्छा जी, ओके। अब इन्होंने कहा आप तपस्या नहीं करेंगे, हम मतंग ऋषि के आश्रम चलेंगे। और फिर उसके बाद अंजना ने ये प्रण लिया कि मैं तब तक रुकूंगी नहीं, मैं चलती रहूंगी, बीच में कोई ब्रेक नहीं लेंगे, कोई बैठना नहीं है, कोई बेंच पे बैठ गए, चलो जी बैठ जाते, थोड़ा सा लाओ यहाँ मूली और गाजर लेकर के आओ, थोड़ा करेंगे, थोड़ी भेलपूड़ी खाएंगे बीच में, थोड़ा भुट्टे खाएंगे, फिर मैंने से भुट्टो बन करके आगे चल देंगे, चलते रहेंगे। तो हालांकि केसरी ने बहुत बार उनको रेकमेंड किया कि देखो इतना लंबा सफर है तो इसलिए आपको थोड़ा चलना चाहिए, तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, बैठ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा मैं तुम्हारी मसाज वगैरह कर दूंगा हाथ पाँव की, तो फिर नहीं, व्रत लिया है, चलते रहेंगे जब तक मतंग ऋषि का आश्रम नहीं आ जाएगा। तो रावण ने एक बैल को भेजा, एक राक्षस था, बैल के रूप में था, कि डराओ इनको सो दैट दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। पर अंजना ने सोचा हुआ था नहीं, मैं रुकूंगी नहीं जब तक मतंग ऋषि का आश्रम नहीं आएगा, मैं रुकूंगी नहीं। और इस प्रकार से चलते रहे। अब वो बैल डराने के लिए आया, लेकिन केसरी ने फाइनली इतना कस के मुक्का मारा उसका, तो उसकी आरसीटी तो वहीं होगी। तो जब उसकी आरसीटी होगी, रूट कनाल थेरेपी, तो उसको पता लगेगा कि भाई ये तो मुक्केबाज बढ़िया है वैसे, तो वहां से भाग गया वो। तो चलते रहे, फाइनली ये पहुंचे मतंग ऋषि के आश्रम में। लेकिन वहां पर अंजना और केसरी दोनों के पांव इतने वुंडेड थे, इतना खून बह रहा था, चलते रहे, उसमें उनको सोर भी हो गए थे, बहुत सारे उनके घाव बन गए थे, लेकिन स्टिल दे वर वॉकिंग। तो वहां जब ऐसे पांव देखे दोनों के, तो मतंग ऋषि ने कहा अरे आपने एक बड़ी घोर तपस्या की यहाँ पहुंचने के लिए। तभी वहां पर एक बहुत ही सुंदर सा बालक आया, इतना सुंदर था वो कि उसको देखकर मतंग ऋषि ने कहा हमारे आश्रम में मैंने भी आज तक कभी इतना सुंदर बालक नहीं देखा। तो फिर बालक जो है वो अंजना मैया और केसरी जी के चरणों में बैठा और वहां मसाज करनी शुरू की। वो मसाज शुरू की, वो पाँव दोनों के बिल्कुल ठीक हो गए, केसरी के पाँव भी ठीक हो गए और अंजना के पाँव भी ठीक हो गए। अद्भुत। उसके बाद पता है बच्चा कौन था? शिवजी आए थे और फिर गए वापस पार्वती जी के पास, कहते हैं पता है भविष्य में मेरे जो माता पिता बनने वाले ना, मैं आज उनकी सेवा करके आया। So पार्वती was also very happy, शिवजी was also very happy। और फिर शिवजी की इच्छा से ऐसा हुआ कि जो शिवजी की जो शक्ति थी, जो उन्हें पवन देव जी को दी हुई थी, उन्होंने कहा पवन देव अभी मतंग ऋषि के आश्रम में मेरी माँ पहुंच चुकी है, तो अब आप उनको अब मेरी जो शक्ति है उन्हें स्थानांतरित कर दो। तो फिर पवन देव जी ने क्या किया, शिवजी की शक्ति को उनकी कोख में इंस्टॉल कर दिया जी। शिव शक्ति की तुमरे हृदय ज्योत महांजलि, जय 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 बजरंगबली। यस, तुमने सुना है ना इसको? नहीं। शिव शक्ति की तुमरे हृदय ज्योत महान जली, जय 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 बजरंगबली। सबने यही सुना क्या? Who let the dogs out? भाव भाव भाव। कभी ये वाले सुनने होते हैं कभी है, ठीक है। तो इस प्रकार से now she became pregnant। अब अंजना जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद फिर ये वापस किष्किंधा पहुंचे। अब किष्किंधा पहुंचे तो वाली को पता लग गया कि ना ये जो अंजना की कोख में जो बच्चा है इतना डेंजरस है, आगे जाकर के पहले इसका पिता जो है केसरी वो तो पावरफुल है, ही इज अ चैलेंज, बेटा भी आगे डबल चैलेंज हो जाएगा, बच्चे को निपटाओ। तो बच्चे को निपटाने के लिए उसने एक ऐसा अस्त्र चुना कि ना माँ को नहीं मारेगा, माँ की कोख बच्चे को मारेगा। तो उसे तीर चलाया और वाकई में लगा कि ना बच्चा तो गया। तो अंजना ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी शिवजी से, शिवजी ये आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है, कुछ करिए। तो शिवजी वहां पर आए, उनकी कोख पे हाथ फेरा, उसका डिलीवरी भी हुई, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक, नहीं सॉरी अब बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, प्रेगनेंसी वाज रिटेन। स्टिल अभी वाली को पता लगा अरे बच्चा तो बच गया, अरे बच्चा कैसे बच गया। तो फिर उसने ना सबसे खतरनाक जहर इकट्ठे किए और फिर उनको बॉयल कर करके उनका सूप बनाया और सूप लेकर के आया। प्रणाम, गौरांग का बर्थडे है, सूप बनाया है, थोड़ा सूप पिएंगी। तो देखा है तो बड़ा अच्छा सूप दिख रहा है, गर्मा गर्म लग रहा है, तो सूप पी भी लिया उन्होंने। और 5 मेटल्स का मिश्रण करके उसने सूप बनाया था कि अंदर जाके मेटल का अंदर काट पीट मारेंगे, सारी आंतें फट जाएंगी, साथ ही बच्चा भी मर लेगा। लेकिन कोई दुख खबरी आई नहीं, कहता बच्ची बनने आई नहीं कि भाई हो आए हमारा बच्चा, अरे ऐसा कुछ आई नहीं। प्रेगनेंसी चली जा रही, फाइनली बच्चा आ भी बाहर आ गया।
बच्चा आ गया। और बच्चे के कान में कुंडल थे, और कुंडल थे वो 5 मेटल के बने हुए कुंडल थे। इससे कान में कुंडल कुंठित कैसा, ये कान में कुंडल बना कैसे है हनुमान जी के? ये उनको जहर दिया गया था 5 मेटल का मिला करके, उसी कुंडल बन गए उनके कान में। इस प्रकार से और उनका नाम पड़ा आंजनेय, क्योंकि अंजना जी के पुत्र। साथ ही उसका नाम पड़ा केसरी नंदन, ये नाम पड़ा उनका। ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ था जी। ठीक है। साथ ही हनुमान जी का जन्म ऐसे भी हुआ, चलो वो लंबी स्टोरी हो जाएगी, अब इसमें नहीं जाते। वास्तव में जो खीर खिलाई गई थी सुमित्रा को, कैकेयी को और कौशल्या जी को, उसके बाद जो मटकी थी खाली जब हो गई थी, उसको फिर एक बाज उठा करके लेकर गया था और फिर अंजना जी को दिया था। अभी भी उसके किनारे में खीर लगी हुई थी, दैट मींस इट वाज महाप्रसाद। तो उसको फिर किनारे साफ करके अंजना जी ने खाया। इस प्रकार से हनुमान जी उनको प्राप्त हुए। तो इस स्टोरी में जी क्या क्या है सीखने को? एक तो डिटर्मिनेशन, जब उन्हें मतंग ऋषि के आश्रम जाना था तो डिटर्मिनेशन, वो रुकी नहीं। यस, हमको पता लगा मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचना है तो हिमालय तक चलती रही। अगर भूख लगी अगर बीच में कभी भी, तो बर्फ का गोला बना करके रूअफ़ज़ा डाल के वहीं पे खा के फिर आगे बढ़ती रही, लेकिन रुकी नहीं, है ना? दूसरा प्रभु जी ऐसा नहीं था। हाँ, पर क्या जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा भी तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पहुंच गए और फिर पैर पे बहुत चोट लग गई, वो सब कुछ शिवजी साफ हाँ। और फिर अगर शिवजी नहीं आए तो मान लो हाँ, लेकिन फिलहाल तो शिव जी आ गए, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहिए। अपनी लिमिट के आगे जाओगे तो ही तो आपकी लिमिट नेक्स्ट लेवल पहुंचेगी। थोड़ा थोड़ा जाना चाहिए ना, एक बार में बड़ा जंप लगाया जाएगा तो कुछ लोग कर लेते हैं, हम जो छगन हलवाई होते हैं वो होले वाले करते हैं, और कुछ जो बड़े होते हैं सूरमा होते हैं, जैसे कि अंजना और केसरी, 1 शॉट ऐसा। एक चीज और है कि वो जो अप्सरा है, हाँ जी, ये उनकी कैपेबिलिटी थी। यस बिल्कुल। हनुमान कब हुआ? जो देखिए साधुत्व गुण भी दिखा हनुमान तब हुआ था जब उनकी टोटी में चोट लगी थी। द वन विद द ब्रोकन चिन, उनको बोलते हैं हनुमान। हाँ जी, बोलो बर्थडे बॉय। एक लेसन हम इससे ये भी सीख सकते हैं कि अगर आप डिटरमाइंड हो तो जो आपका मिशन है उसको फुलफिल करने में भगवान भी हेल्प करते हैं। यस बिल्कुल, अगर आप डिटरमिन्ड हैं तो भगवान भी हेल्प करते हैं। यस, फर्स्ट डू योर बेस्ट एंड देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ रेस्ट। यस, हाँ जी। प्रभु जी एक ये चीज कि अगर हम किसी को सर्व कर रहे हैं, वी आर सो एक्साइटेड बट दैट शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन आवर एक्शन, वी शुड बी वेरी केयरफुल। जैसे स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा तेरी थी ना, फैल रहा था उनसे। क्या फैल रहा था? कौन फैल रहा था? वो पानी ला रही थी, फैल रहा था। हाँ, पानी एक्साइटमेंट उनके एक्शंस में आ रही थी। हाँ। तो एक्साइटमेंट हमें अपने अंदर रखनी चाहिए। एक्साइटमेंट हमें अपनी छुपा के रखनी चाहिए। एक्सटर्नली ओवर एक्साइटमेंट। हाँ बताइए जी। यस, हाँ, कभी कभी कर्सेस के अंदर ब्लेसिंग छुपी होती है। वेरी गुड। हाँ बताओ जी। फॉरगिविंग नेचर ऑफ अ वैष्णव आल्सो, कि दुर्वासा ऋषि वाज अ वेरी अग्रेसिव, हाँ। बट उनसे जब उन्होंने रिक्वेस्ट की, क्षमा मांगी, तो उन्होंने भी अपना फॉरगिवनेस दिया एज अ वैष्णव के Yes. आशीर्वाद के। बिल्कुल सी बात है। और गलती हो तो गलती मानी भी। तो क्या गलती की थी उन्होंने? पानी गिरा दिया। हाँ, दुर्वासा मुनि ने अपने ऊपर पानी गिराया। शाबाश, मोगैम्बो दुखी हुआ। एक्साइटमेंट मतलब इंटेंशन नहीं देखी थी, एक्शंस देखे। अच्छा, और ये किसी गलती बता रहे हो? ये आप दुर्वासा मुनि ने क्या गलती की थी? ये कि इंटेंशन नहीं देखी। बिना मतलब के श्राप दे दिया। मैंने बताया था क्या गलती की उन्होंने? ओवर रिएक्ट। हम में से किस किस ने कभी लाइफ में गलती किया है? हम ओवर रिएक्ट कर गए। हम सब ये गलती करते हैं। छोटी सी गलती होती है उस पर ऐसा बवाल मचाते हैं, अरे क्यों आ गई तू मेरी जिंदगी में, तो ये मर जा कहीं जाके, तू ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। तो ओवर रिएक्शन किसमें, कौन से गुण में आएगा? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण? रेस्तम गुण। इसमें आएगा रजो में या तमो में आएगा? सत्व तो आएगा नहीं। ओवर रिएक्ट करना। रजो रज्जो तो गुण। हाँ, रज्जो वो मेरी रज्जो। देखो, अगर ओवर रिएक्शन अगर डिजायर्स के लिए को लेकर है तो पैशन में आएगा, और अगर गुस्से में है तो
तमोगुण में आएगा। अक्सर हम ओवर रिएक्ट किसमें करते हैं? तमोगुण में ही करते हैं, यानी कि हम गुस्से में करते हैं। हाँ जी, और क्या लेसन है जी? हाँ बोलो बेटा जी। यस, हाँ हम भी अपने खून से मारेंगे। क्या बात है, ऐसा लेसन तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, हमारी ही बैड क्वालिटीज हमारे दुश्मन होती है। वेरी गुड। और पीछे हाँ जी बताइए वैष्णव भाई को। यस, when you serve the Vaishnavas carefully, yes, so किसने वैष्णव की सेवा ठीक से नहीं की? वो जो अंजलि ये बॉल जैसे फेंक के ना दोबारा से उसको फेंक दो खिड़की से में। ये है ना विंडोज एक्सपी। हाँ जी, वाली हाँ वाली। Yes, she is a devotee, so हाँ, तो क्योंकि वो शरणागत है तो इसने हाल ही उनके ऊपर अटैक हुआ, because she was surrendered, तो इसीलिए उनकी रक्षा हुई। तो वही 5 मेटल जिसको यूज किया गया था हनुमान जी को मारने के लिए, वही बन गए उनके कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रो ध्वजा विराजे। क्या बोला? शंकर? हाँ, ये तो गड़बड़ है। एक्चुअली शंकर स्वयं केसरी नंदन। हम लोग सब बोलते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन, पर असल में है शंकर स्वयं केसरी नंदन। होता क्या है, बोलते बोलते वो ना चेंज रहता था कि तो शंकर सुवन का मतलब क्या है? कुछ नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। यस, तो शिव जी की 11वें रुद्र अवतार है हनुमान जी। बोला था कि जब अंजनी और केसरी जब जा रहे थे मतलब ऋषि का आश्रम में, तो रावण ने बैल भेजा था, तो रावण और केसरी का कुछ हिस्ट्री था मतलब। ऐसे क्या है, रावण को ये पता था कि इन फ्यूचर देयर वुड बी वन मंकी बोर्न फ्रॉम केसरी, क्योंकि केसरी को जानता था वो, जो केसरी का पुत्र होगा और वो उसके अगेंस्ट पे काम करेगा। एग्जैक्टली कैसे करेगा कि राम जी का वानर सेना वो लीड करे, ये नहीं पता था उसको, पर ये पता था ये जो केसरी है ये उस पार्टी का बंदा है और इसका बच्चा बहुत पावरफुल होने वाला है, इसलिए बच्चा नहीं होने देना है इसका। इतना उसको पता था, उसके एस्ट्रोलॉजर ने बताया था उसको, जहाँ गुड़गांव में रहता था। हाँ, तो वो रावण खुद क्यों खाया? वो उस दिन चुस्की खा रहा था, इसलिए वो भारी भाई। उसने प्यादे को क्यों भेजा? उसने वजीर को क्यों नहीं भेजा? ताकि प्यादा जो है आलसी ना हो जाए। उसको पता है ये बहुत मेजर इंसान है, बड़ा इंसान है। हाँ, तो बैल को उसने अच्छे से खिलाया पिलाया था, उसका नाम भी रखा ग्राहम, ताकि उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा फिर? ग्राहम। इसने फिर यही आगे जाकर के टेलीफोन ही जाकर कि भैया वो काम तो नहीं कर पाया, कम से ये तो कर लो, इसलिए फिर ये बना ग्राहम। सही बात। कितने वेले हाँ जी, और क्या सीखा जी स्टोरी से? यस, जोर लगाओ। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना बताओ जी। यस, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। हाँ, कभी कभी कम ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और जी यस, बालकनी सीट वाले क्या क्या सीखा आपने इस कहानी में? दूसरों को टच नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट क्यों? कैसे भाई? जैसे रावण ने बैल को हाँ, रावण ने बैल पे ट्रस्ट करेगा। बहुत बढ़िया, देखो क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। ओके, बढ़ते हैं जी अगली कहानी की ओर, ठीक है। तो एक बार एक ना सर्कस खुला था, और इस सर्कस की खास बात ये थी कि ना सर्कस में एट अ टाइम पे सिर्फ एक ही व्यक्ति जाएगा और वही सर्कस देखेगा और बस ऐसा। तो फिर रात के 2 बजे से सर्कस की लाइन लगनी शुरू कर रहे हैं, भैया अरे भैया स्पेशल ट्रीटमेंट होगा हमारा, तो इकलौता हमारे लिए ही सारा सर्कस होगा। तो रात के 2 बजे से लाइन लगनी शुरू हुई और सुबह 9 बजे से फाइनली ये सर्कस खुला।
तो पहला बंदा जो था वो अंदर गया, दरवाजा बंद हुआ, अंदर जाके देखा कोई सर्कस नहीं है भाई। वहां तो लिखा है जंबो सर्कस, यहाँ तो ना जंबो ना सर्कस, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तभी वहां पर एक रिंग मास्टर आया, हाथ में उसका हंटर था, सटाक सटाक मारा, पीटा उसको, कहा चल हो गया सर्कस, जा बेटा। अब उसने सोचा मैं बाहर जाऊंगा, ये बताऊंगा ये हुआ मेरे साथ, बहुत बेइज्जती होगी लोगों ने, 2 बजे से लगे थे और तुम्हारे साथ ये हुआ। बहुत बेइज्जती होगी। तो बाहर आया, लोगों ने पूछा कैसा था, कैसा था? क्या भाई साहब, once in a lifetime man, once in a lifetime, अद्भुत। सेकंड वाला बैठा, सेकंड वो कहता अरे सच में रे, अरे वाह। ये भी अंदर का दरवाजा बंद हुआ, रिंग मास्टर आया, ताड़ तोड़ मारा, उसने चल हो गया चलो जा बेटा। हम भी रात के लगे हुए 3 बजे के, बहुत बेइज्जती होगी हम बताएंगे तो कि हमारे साथ ये हुआ है। ये बाहर आके बोला भाई साहब ऐसा सर्कस ना भूतों ना भविष्य की। अमेजिंग अमेजिंग है, मस्ट वॉच। इस प्रकार सबके सब अंदर गए, सब पिटे, सब बाहर आके बोले वाह भाई साहब अद्भुत अद्भुत। तो क्या सीखते हैं हम इससे? हम लोग इस संसार में आते हैं ये सोचते हैं बहुत एंजॉयमेंट होगा और माया देवी की हड्डल पड़ता है। वेरी गुड। आपके बारे में क्या सोचेंगे? नोट किया, साफ साफ बताओ, पिट के आए। और सच बता दो, इसीलिए एक बंदे की वजह से वो जो 100-150 लोग थे वो पिट गए। 100-150 नहीं थे, 500-600 थे। नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझा करो। हाँ लेकिन सारे मिलते कैसे, हाउ आर यू डूइंग मैन, रॉकिंग यस। लेकिन सब जूते चप्पल खाते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन सब ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड खाना, जोमेटो स्विगी आए बड़े। हाँ इससे उसको बोलते हैं चप्पल सुख, यानी चप्पलों के साथ मिलने वाला सुख। चप्पल सुख क्या होता है वैसे? बड़े चप्पल सुख, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, आने जाने वाली हैप्पीनेस, उसको बोलते हैं चप्पल सुख। चप्पल सुख, ठीक है। सर्कस नहीं जाना चाहिए। हाँ कभी सर्कस नहीं आना चाहिए, सही बात है। हमारे पास सोशल मीडिया है तो सही। हाँ जम्बो तो बिल्कुल नहीं, जैमली सर्कस जाना। ठीक है जी, अगली कहानी का और बढ़े। तो अगली कहानी है, एक भक्त हुए थे, उनका नाम था धन्ना जाट। किसी से नाम सुना धन्ना जाट का? धन्ना जाट जब वे छोटे थे तो इनके घर में पंडित जी आए हुए थे और पंडित जी पूजा अर्चना कर रहे थे शालिग्राम की। तो उन्होंने कहा भाई हमको ही चाहिए शालिग्राम, हमको भी, तो हम भी पूजा करेंगे, हम पूजा करेंगे। तो माता जी ने कहा बेटा तुम छोटे हो, तुमसे नहीं हो पाएगी पूजा अर्चना। अरे नहीं हमें भी करने। अब जब ऐसे जिद पकड़ ली तो जो पंडित जी थे वो बाहर से एक पत्थर लेकर के आ गए। कहता है देखो ये है राजा ठाकुर, और ये जो जिसकी हम पूजा कर रहे थे शालिग्राम की वो है सिपाही ठाकुर। तो तुम क्या चाहते हो, राजा ठाकुर यानी कि जो पत्थर है ये राजा ठाकुर, या जिसकी पूजा हम कर रहे थे सिपाही ठाकुर? सिपाही से हम क्या करें, हमको राजा जी। तो वो पत्थर पकड़ा दिया, जो बाहर से गली से उठाया था पत्थर, ये पकड़ा दिया। लो ये है तुम्हारे राजा ठाकुर, करो जिनकी पूजा। और इन्होंने तो जी पूजा अर्चना शुरू कर दी। हाँ उस पर आरती वारती करना, लेकिन मैंने देखा वो चंदन लगाते हैं। कहते माँ चंदन चाहिए। ये चंदन कुछ नहीं बेटा, ईंट पकड़ा दी, कहते हैं इसको पानी में थोड़ा घिसो, इससे चंदन बन जाता है। वो ईंट लेके आए, ईंट घिस रहे हैं, उसमें लाल लाल भर गया उसका पेस्ट, वही उस पर अपना पत्थर पे लगा रहे हैं। राजा ठाकुर जी तुलसी के पत्ते, तो तुलसी के पत्ते हैं, वो बाहर जो कड़ी पत्ता जो उड़ा होगा वही तोड़ के ले आए, कड़ी पत्ता वही चढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार से बात भी करते थे। और बताए राजा ठाकुर आज क्या हुआ, आज तो ये हुआ, वो जो है ना इतना गंदा दोस्त है मेरा, उसने मुझको धोखा दिया, मेरे पीछे ऐसे बातें करता है वो, और इस तरह से वो राजा ठाकुर से बात भी करते हैं। तो फिर देखा कि ना पंडित जी अक्सर आते फिर भोग भी लगाते हैं उनको। अपने सिपाही ठाकुर कहता है इनके सिपाही ठाकुर खा सकते हैं, तुम्हें राजा ठाकुर भी तो खाएंगे। तो फिर मांग करके अपनी माँ से बोले कि माँ मेरे को ब्रेड दे दो। तो माँ ने ब्रेड पकड़ा दी, ब्रेड ली, ब्रेड आगे रखी, खाओ खाओ, खा क्यों नहीं रहे हो तुम? खा ही नहीं रहे हो तो तुम खाते क्यों नहीं हो? तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? फाइनली धन्ना ने क्या किया, धन्ना ने अपने पीठ करके ले लिया। कहता है खाते ही नहीं है, मैं ब्रेड लेकर के आया,
खा ही नहीं रहे, तो बिना पीठ के पीछे से वहां आवाज आनी शुरू हुई। पीछे देखा भाई, ब्रेड खा गया राजा ठाकुर। इतना खुश हुए कि मैंने इतनी मिन्नत की थी, फाइनली मेरा ये दोस्त मान गया मेरी बात। उसके बाद ये उनसे बातचीत करते हैं और फिर ऐसे बड़ा होना शुरू हुए। अब बड़ा होना शुरू हुए तो फिर ना कई भक्तों ने जब देखा कि ये इसका बड़ा गहरा भाव है, और ये जो पत्थर है ये कोई शालीग्राम शिला नहीं है, ये तो गली के से उठाया पत्थर है ये तो, और उसके साथ इसका ऐसा भाव है। तो उन्होंने बोला देखो बेटा, तुम्हारे साथ अच्छा है, भगवान तुम्हें बड़ी दया कर रहे हैं, लेकिन ना जब तक तुम किसी वैष्णव गुरु से दीक्षा नहीं लोगे, शिक्षा नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा जीवन सिद्ध नहीं होगा। और ऐसे नहीं करते कभी कुछ भी खिला दिया, नहीं, रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, दर्द प्रणाम करना चाहिए, नहा धो करके भोग लगाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये रूल वो रूल, ये डूज ये डोंट सब बताएं। अब ये सब जब करना शुरू किया तो जो उनका जो फीलिंग थी ना वो चली गई। तो रूल रेगुलेशन है। अब साथ ही वैष्णव गुरु को जो लेकर के आए तो उनसे भजन वगैरह लिया उन्होंने, लेकिन अब वैसा रिश्ता नहीं था जैसे पहला था। बच्चों ने बात क्या करते थे, अभी तो बात भी नहीं करते मेरे से, कभी बात करते कभी नहीं करते, तो थोड़ा सा उदास भी रहने लगे वो। लेकिन धीरे धीरे करके लेकिन भजन जब करने लगे तो ना उनके भजन में मैच्योरिटी है। पहले एक बचपना था, अभी मैच्योरिटी आ गई। तो इतना प्यार हो गया था उनका कि एक समय धन्ना जाट जो है खेतों की रक्षा कर रहे थे। अब खेतों की रक्षा कर रहे कहते लेकिन भजन के लिए टाइम नहीं मिलता मेरे को, मैं क्या करूं। तो फिर एक व्यक्ति आया, कहता भाई हम कर लेंगे सेवा। अच्छा ठीक है, कहता लेकिन हम तुमको जितनी भी पैदावार होगी इसका 1/4 तुमको मिलेगा। 1/4 से क्या होता है, 1/3 लेंगे। तो बड़ा मोल भाव करने के बाद फाइनली धन्ना जाट माने कम से भजन तो कर पाऊंगा। ठीक है भाई, 1/3 हो गया, सुबह दोपहर शाम का खाना पीना भी कर लेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। इस प्रकार से धन्ना जाट के पास सब समय था भजन करने का। एक समय पहुंचे तो ये जो है तो लेटा हुआ है अपना पूरा कंबल उम्बल ओढ़ करके। तो धन्ना जाट आया, कहता है इसको तो मैं रंगे हाथ पकड़ता हूँ, क्योंकि सो रहा होता है, ये देखभाल क्या करेगा, ये तो सो रहा होता है। ये तो कंबल हटाया, वहां भगवान कृष्ण लेटे हुए थे। तो कृष्ण देखा तो तुरंत वापस, हाँ बताइए। कहता ना 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 ना, पहले क्या रूप लिया था उसमें आओ, उसमें आओ तुम। कहता नहीं कौन सा रूप, ये तो रूप है, और कौन सा रूप है, ये तो रूप है। कहता ना 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 ना, मुझे वही रूप दिखा। तू तो कृष्णा है रे। कहता नहीं, हम कहाँ से कृष्णा हो जाएंगे जी, हम तो यहाँ पर देख रेख करते हैं, खेतों की था ना, वो रूप लेके आ। तूने मेरे सामने अभी रूप बदला है, वापस आ उस पर। फाइनली फिर कृष्ण भगवान अपने ओरिजिनल रूप में आए और धन्ना जाट का आलिंगन किया और धन्ना जाट को भगवान के दर्शन हुए। इस स्टोरी से क्या सीखने वाला है भाई? अभी हम उनसे सुनेंगे जिन्होंने अब तक मुंह नहीं खोला है। हाँ जी माता जी, बताओ जी। हाँ जी, भावग्राही है, यस, भगवान भाव को देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है किसी घर में शालीग्राम शिला हो पर ठाकुर जी वहां से चले जाएं, विग्रह हो और विग्रह छोड़ के वहां चले जाएं, क्यों सेवा होती नहीं यहाँ पर। यहाँ तो वो चलो जाए, तू धो देना, तू बर्तन धो देना, अब तू भोग लगा देना, कल मैंने भोग लगाया था ना, तो आज तो तू लगा भाई, रोज हमें लगाएंगे क्या, तुम भी लगा लो, ठीक है भोग मैं लगा दूंगी लेकिन बर्तन भी तुमको मांगेंगे। भगवान भी कहते ले भाई हम तो बोझ हैं। लोग यही सोचते रहते हैं, गंदगी मची हुई है, साफ सफाई होनी नहीं। साफ सफाई किस दिन होती है, जिस दिन घर में गेस्ट आ रहे होते हैं, कहते हैं भक्त आ रहे हैं, सफाइयाँ करो अच्छे से। फिर अच्छे से चाहे सब ब्रश व्रश लगा लगू करके फिर सारे उन पे जितनी चिकनाई लगी होती है फिर चिकनाई साफ होती है, सबसे सब साफ सफाई होती है। फिर सबके आगे एक गुलाब का फूल रखा जाता है। अब हमारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगी। आप रोज ऐसे सेवा करते हैं? हाँ प्रभु जी, इतना तो हो ही जाता है। भगवान मतलब ऐसा हाल रहता है, भगवान इज भोगा ऑफरिंग मशीन। बस मार ताली निकाल थाली, वाह, क्या तुम खाओ ना खाओ हम तो खाएं। तो यस, भाव होना चाहिए भाई। विग्रह को घर में बाहर नहीं समझना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ बर्डन। ये कौन श्रृंगार करे, कौन नहलाए धुलाए, ओहो फिर से संडे आ गया, फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे इनके, कौन भूख लगाए, ओहो जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो, भूख लगी है। इस प्रकार से भूख लगाते हैं, खिलाते हुए हमें पसंद है।
यस, तो इसलिए भाव होना चाहिए। हाँ जी, और फेथ मैच्योरिटी वो दिया था, स्टोन दिया था, उसमें उनका फेथ था। हाँ आपने ये स्टोरी एक बार सुनाई है और उसमें आपने लास्ट में कहा था कि जहाँ प्रीति होती है वहाँ नीति काम नहीं करती। हाँ, ये जहाँ प्रीति होती है वहाँ नीति काम नहीं करती। वेरी गुड। और मैच्योरिटी यस, वन शुड बी अटैच्ड टू द डिटेल्स। अच्छा, और मैच्योरिटी मैच्योरिटी, कौन किन की मैच्योरिटी? किसमें मैच्योरिटी? सेवा करना। सेवा करने में कैसे आती है मैच्योरिटी? अगर तुम करते जाओ यस, जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं आएंगे तब तक स्पिरिचुअलिटी में मैच्योरिटी आती नहीं है। कुछ सेंटिमेंटलिटी होती है शुरू में। वो काना माखन मिश्री खाओगे और तुमने माखन मिश्री खा ली। वो काना, ओ कन्हैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ काना, आई लव यू काना, काना काना, मैं हूँ काना काना। यस, मोर ऑफ सेंटिमेंटलिटी, लेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हाँ जी, और क्या सीखा जी? यस, गॉड इज वेरी रेसिप्रोकेटिव। भगवान बड़े रेसिप्रोकेटिव। हाँ जी, और तो जितना आप सेवा करना चाहेंगे भगवान उसके लिए फैसिलिटेट भी करेंगे आप। गुड, चलो अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, हाँ पूछिए। जैसे आपने बोला ना कि भगवान ऐसे ओढ़ के लेटे थे अपने श्याम सुंदर फॉर्म में और उन्होंने हटाया तो वो तुरंत, तो भगवान को तो सब पता है कि वो आएंगे हटाएंगे, तो क्या ये भगवान को पता है इसलिए भगवान ने ऐसा किया? देखो, भगवान की लीलाओं के अंदर स्क्रिप्ट राइटर कौन है? भगवान को। हीरो कौन? प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन? हीरो भी वही है, खेलने वाले भी वही है। तो उसमें लगता है ओ भगवान, ये करते ही वही है सब। यस, ओके। हाँ जी, बोलो भगत। यस, और सेंटिमेंट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो गुरु साधु और शास्त्र से बैक नहीं होना चाहिए। भाई किचन में जो कृष्ण कथा चल रही है उनको बोल दो थोड़ा शांत हो जाए। माता बातें ना करो। हाँ जी, यस। जैसे फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स था उनके अंदर, लेकिन जब गुरु साधु और शास्त्र मिले तो मैच्योरिटी आया। तो फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स गुरु और साधु शास्त्र की डायरेक्शन में। ये पॉइंट हो गया अलग। यस, बट यस, दिस पॉइंट इज वेरी गुड। ओके, तो लास्ट स्टोरी ऑफ द इवनिंग, आखिरी कहानी। ठीक है जी। एक समय सीताराम जी ने इनवाइट किया था पार्वती मैया को और शिव जी को, कि आप भी आइए जी हमारे यहाँ। तो अयोध्या में पहुंचे पार्वती मैया और शिव जी, और फिर सीता मैया ने अच्छे से स्वागत किया, राम जी ने अच्छे से स्वागत किया, भाई हमारे यहाँ पर पार्वती और शिव जी आए हैं। और फिर शिव जी ने भर भर के गुणगान किया रामचंद्र जी का, और रामचंद्र जी ने गुणगान किया शिव जी का। उस समय शिव जी ने पूछा हनुमान कहाँ पर है? लेकिन कहा हनुमान ना गार्डन में होगा। तो शिव जी और पार्वती मैया गए गार्डन में हनुमान से मिलने के लिए। अब गार्डन में ना खराटे की आवाज आ रही थी। अब खराटे की आवाज आ रही है यहाँ पर, लेकिन खराटों की अद्भुत बात ये थी, खराटों में नाम क्या था? श्री रामचंद्र जी का। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय राम, श्री 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 राम, जय राम, कीर्तन कर रहे हैं। अब शिव जी ने देखा, पार्वती ने देखा, अरे वाह क्या अद्भुत बात है भाई। यहाँ पर हनुमान यहाँ पर आम के पेड़ के नीचे ऐसे लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और खराटों में भी क्या आवाज कर रही है? श्री राम, जय राम, जय जय राम। अद्भुत। और यही नहीं, वो कीर्तन कर रहे हैं, इवन पेड़ के पत्ते उनमें से आवाज आ रही है, जय राम, श्री राम, जय जय राम। जो गिरहरी है वो भी कर रही है श्री राम, जय राम, जय जय राम। यहाँ किन्नर गंधर्व वो भी आए, वो भी कर रहे हैं श्री राम, जय राम, जय जय राम। अरे अद्भुत। अब यहाँ सीता मैया ने बोला, वो शिवजी पार्वती गए थे, वो गार्डन में वापस ही नहीं आए, तो लक्ष्मण लेकर क्या हो जरा उनको। तो लक्ष्मण पहुंचे, उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो कीर्तन चल रहा, कीर्तन मेला।
और गाने वाला लेट कर ही गा रहा है। और यहाँ पर सब जब नृत्य कर रहे हैं तो डांस करना शुरू किया, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अब सीता मैंने कहा लक्ष्मण गए थे वापस ही नहीं आए, अब भरत आप देख कर के आएंगे? कहते हाँ भाभी अभी देख कर के आते हैं। भरत गए, वो देखा है तो डांस पार्टी चल रही है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। शत्रुघ्न गए, वो भी गए, वापस नहीं आए। जो जाता वापस ही नहीं आता। तो सीता मैया बोला कि प्रभु ये हो क्या रहा है, जो जाता है वो वापस ही नहीं आता। राम ने कहा, रामचंद्र ने कहा चलो आप देख करके आते। देखा वहां तो कीर्तन मेला चल रहा है भाई, मायापुर का कीर्तन मेला, फिर इसके आगे ऐसा कीर्तन, और कीर्तन करने वाला जो है वो तो लेटा हुआ है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, राम। वाह जी। तो फिर राम जी पहुंचे, राम जी ने सर पे हाथ फेरा हनुमान जी की, हे हनुमान श्री राम जय जय। देखा सब आसपास डांस करने, कहते क्या हो गया था? हनुमान तुमने ऐसा कीर्तन किया, मतलब क्या ही अद्भुत कीर्तन किया तुमने। कहते अच्छा हो। फिर शिवजी ने इतना गुणगान किया उनका कि हनुमान तुम क्या भक्त हो रामचंद्र जी के। इस दुनिया में लोग नाम लेते लेते सो जाते हैं और तुम सोते सोते भी नाम ले रहे। वाह अद्भुत। ऐसा गुणगान करना शुरू किया उन्होंने हनुमान जी का कि हनुमान जी वाज फीलिंग एम्बैरेस कि मेरे सामने मेरे प्रभु मेरे स्वामी राम जी खड़े हो, उनके आगे मेरी तारीफ हो रही है। तो सीता मैंने देखा वो एम्बैरेस हो रहे हैं हनुमान जी। ओह चलो ठीक है जी, चलो लंच के लिए चलते हैं। अब लंच का टाइम हो गया, गोरांग का बर्थडे है भाई, तो केक कटिंग भी हो रही है, शादी माना तो इसलिए लंच की तैयारी तो करनी थी। तो सारे वहां पहुंचे और बहुत ऐसी तैयारी करके रखी वहां पर, अरे माय गॉड, अरे पिज्जा पास्ता तो वो तो मतलब दाढ़ गीली करने के लिए रखा था ऐसा भव्य अरेंजमेंट। तो सबने एक सब पा रहे थे, लेकिन हनुमान खाए जाए और आए और सीता मैया और लेकर के आए और खाएं। तुमने कहा बढ़िया एपेटाइट है भाई। फिर फाइनली फिर सीता मैया ने कहा कि तुलसी का पत्र था उस पे लिखा राम, फिर वो रखा थाली में, फिर वो जब मुख में गया हो गया। सबने कहा वाह हनुमान जी कितनी आसक्ति है राम जी से, उनके नाम से कितनी आसक्ति है कि चाहे वो किसी भी अवस्था में हो लेकिन वास्तव में वो श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं। तो क्या क्या सीखा जी हमने इसमें? राम से बड़ा राम का नाम। हाँ, राम से बड़ा राम का नाम। यस, और दूसरा बस रुजा बालिके। हाँ, ये और पीछे वाला, हाँ बताओ बालक। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हाँ, क्या क्वालिटी ओवर क्वालिटी? क्वालिटी वॉज नहीं, इतना सारा खाना खाया पर दैट वाज नॉट इनफ, पर एक बंदा, एक तुलसी का पत्र है वो इज क्वालिटी। हाँ, और बाकी सिर्फ ये इससे बात की सात्विक मूवमेंट बनी। हाँ जी यस, हाँ बताइए जी यस। हाँ, शुद्ध भक्त का भजन ऐसा होता है कि इवन जो जड़ है वो भी चेतन हो जाए ऐसा, क्योंकि हम लोग भी क्या है, हम लोग चेतन की जड़ है। चेतन बचेगा हम लोग, चेतन होते तो चेतन महाप्रभु के पास जाते, लेकिन ऐसे हम लोग चेतन ही यहाँ लगे। लेकिन पीपल आर सो डल हेडेड इन कलियुग कि मान लो जड़ ही है। तो हमें अपनी जड़ों पे काम करना है। कैसे? भगवान के नाम से। हाँ जी, और यस, हाँ बोलो बालक। भगवान के मुंह में सब मोहित हो जाते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। प्रभु जी बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ जी बताओ। प्रभु जी जैसे शिव जी उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो उससे हमें ये शिक्षा मिलती है हमें भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हनुमान जी अपने ग्लोरिफिकेशन सुन के एम्बैरेस हो रहे थे। यानी अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हमें एम्बैरेस कराना चाहिए भक्तों को। बोलना नहीं चाहिए, मतलब हमें तुम्हें भक्तों को एम्बैरेस कराना चाहिए। मतलब अगर हमारी कोई करे तो हमें फूलना नहीं चाहिए। तो हमें भक्तों को एम्ब्रेस करना चाहिए। यस, हमें भक्तों को एम्ब्रेस करना चाहिए, लेकिन प्रभु को एम्ब्रेस करना चाहिए और माताओं को एम्ब्रेस करना चाहिए। सही बात है। हाँ जी, और अल्टीमेटली सारी लीला के अंत में क्या होता है? प्रसादम। तो सारी कहानी के बाद क्या आएगा? प्रसादम। जय हो श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की
जाए। किसी को पूछना है? हाँ बताइए जी। यस जी, आजकल सबके लिए मोबाइल फोन एक ऐसी बीमारी बन गया है, चाहे छोटे बच्चे हैं बड़े हैं, तो उससे कैसे डील करें, क्योंकि ये बहुत एडिक्शन बन चुका है सबके लिए। यस देखिए, जब तक अप्सरा को साथ लेके चलेंगे दिक्कत जाएगी। तो इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि ना आप एक बटन वाला फ़ोन मेंटेन करें और साथ में एक ये मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन मेंटेन करें। तो ओला उबर रैपिडो वगैरह करने के लिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने साथ जो लेके चलें बटन वाला फ़ोन ही लेके चलें, उससे कॉल हो भी जाती है, कॉल आ भी जाती है, ठीक है, अलार्म भी लग जाता है, मैसेज चला भी जाता है, मैसेज आ भी जाता है। दैट्स इट। जब तक अप्सरा से डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे आपका बेड़ा गर्क है। बेड़ा पार करने के लिए इससे डिस्टेंस बनाना, तो बिल्कुल खाली बैठते हैं तो हम ये कर ले जाएंगे, प्रसाद पाएंगे बीच में कर लेंगे, बात करते 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 हाँ बोल 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 अच्छा अच्छा या पर हम बिजी खाएं यहाँ पर, तो इसलिए ये करना चाहिए दैट यू शुड मेंटेन वन बटन वाला फोन। साथ ही आप इसमें पेरेंटल ऐप भी डाल सकते हैं। पेरेंटल ऐप में होता है कि ना रोज इतना डेटा ही कंज्यूम करेंगे, उसके बाद इंटरनेट ऑफ। अदरवाइज मैंने सर्विस प्रोवाइडर को बोले कि मेरे को इंटरनेट नहीं चाहिए, मैं जब वाईफाई में आऊँगा तो बस हम कर लेंगे, बस वाईफाई जब मिलेगा तो मिलेगा, जब नहीं है तो कुछ नहीं, फोन है बस, दैट्स इट, ये कर लीजिए। तो इस तरह से वी कैन मेंटेन डिस्टेंस विद दिस मोबाइल फोन। और जपा करते वक्त स्टेप 1 पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने हाथ को बीड बैग में डालना है। कौन कौन मानते हैं इस बात को? गलत। स्टेप 1 मोबाइल फोन को अलमारी की छत पे डालना है। स्टेप 2 जपमाला में हाथ डालना है। कौन मानता है स्टेप 1 जपमाला में पूरे आत्मविश्वास के साथ हाथ डालना है? कौन मानता है इस बात को? अरे माता जी अभी तो बता, ये है स्टेप 2। स्टेप 1 क्या है? इसको अलमारी की छत पे साइलेंट करके डालना है। ये नहीं कि वो वहां ऊपर तड़प रहा है आप नीचे तड़प रहे हो। हाँ, तो इसीलिए उसको साइलेंट कर दो और फिर डाल दो, एंड देन यू चैंट योर जपा, यू डू योर रीडिंग एंड ऑल दैट, उससे फिर उसको वहां से निकाल दो, दैट्स इट। सो ट्रीट दिस लाइक अ लैंडलाइन फोन। यूज किया नहीं पर इसको हमेशा अपने साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है। यूज किया, हाँ जी करिए, इसको हमेशा अपने साथ लेके नहीं चलना चाहिए। हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में सबके उसमें पेरेंटल ऐप है, यानी कि हमारी सारी गतिविधियां ट्रैक होती हैं, और महीने में एक दिन हमारी ब्रह्मचारियों की इष्ट गोष्ठी होती है। उसमें फिर हम और स्क्रीन लगा करके मॉनिटर और सबका हिस्ट्री स्क्रॉल करते हैं, और इसमें 45 मिनट सकते हैं, सबकी हिस्ट्री स्क्रॉल होती है। चलो जी अब अमू गिलाबू की बारी है, खोलो जी फोल्डर जैसे जैसे क्लिक करते हैं तो सर देना सारी हिस्ट्री आती है, फिर स्क्रॉल होती है, कहते प्रभु जी कहाँ गए? ओह अरे पैलेस्टीन और इजराइल वॉर में 10-10 वीडियो। अमू गिला प्रभु जी, जियो पॉलिटिक्स से बड़ा मन लग रहा है आपका, भक्ति मन थोड़ा कम हो रहा है। ओह वेरी एम्बैरेसिंग। इसीलिए फिर आपका एक एक क्लिक जब रिपोर्ट होता है ना, सो मेक योर इंटरनेट ब्राउजिंग पब्लिक। दुनिया वाले भी देखें हम कहाँ कहाँ गए। फिर डिलीट हिस्ट्री का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री डिलीट होती ही नहीं ना। कुकीज तो खाई जाएंगे, डिलीट नहीं होगी वो। हाँ, तो इसलिए अपने इंटरनेट ब्राउजिंग कर दो पब्लिक। हमारे ब्रह्मचारी आश्रम सबकी पब्लिक है। आप जहाँ जहाँ गए, यूट्यूब पे हमने क्या क्या देखा, अमेजोन पे क्या क्या शॉपिंग की, कहाँ विंडो शॉपिंग की, सब स्क्रीन पे आता है। वाह, तो सब हम इष्ट गोष्ठी वाले दिन इसी चीज का वेट कर रहे होते हैं। क्या चलो जी सारे पॉइंट हो गए कवर, सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग कवर, चलो जी अब लगाओ स्क्रीन। सबसे पहले हम गिला देखिए प्रभु जी कहाँ कहाँ गए। उससे क्या होता है, यू लिमिट योर यूसेज ऑन इंटरनेट। बेइज्जती है ना, इज्जत खराब होगी, सारे ब्रह्मचारी कहेंगे हाँ। तो इसीलिए ये भी करना चाहिए हमें। यस, जैसे प्रभु अगर किसी की समस्या यह है कि हिस्ट्री से उसे कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी ऐसी आदत है उठा उठा के देखने की। हाँ, इसको लैंडलाइन बनाओ ना, साथ में अपने पास फोन रखो बटन वाला, नोकिया 3310, सैमसंग गुरु, इंटेक्स, लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन। प्रभु जी ये चीज़ आपने लास्ट ईयर भी बोली थी कार्तिक में, बट होता क्या है कि हम लोग इसलिए उठते हैं कि जब टाइम मिला तब
जैसे जैसे हम बच्चे वाले हैं तो ये लगता है जब बच्चे से दूर हुए तो लगा के कुछ सुन लिया हाँ। और ये इसी में पॉसिबल होता है। सुनो लैपटॉप में सुनो, क्योंकि लैपटॉप हम अपने साथ कैरी नहीं करते। लैपटॉप रखो, लेक्चर पिक्चर जो रखने रखो उसमें सुनो। इसके साथ नहीं करना, इसके साथ जो है तलाक तलाक तलाक, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता नहीं रहा, करना है इसके साथ। यस, रिश्ते खराब हो गए, हेल्थ खराब हो रही है। मैं देखा बच्चों की गुगुल भी बाहर आ रही है। भाई कोई बूढ़ा हो जाए, जैसे हम बुढ़े हो रहे हैं, अब हमारा पेट आए तो समझ में आता है। जवान लोगों के पेट आ रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर खेलते ही नहीं है, इनमें स्टेमिना ही नहीं है। फूके हुए शरीर, फूके हुए मन, फिर फूके हुए रिश्ते। तो इसलिए तुम्बा बन रहे जवान लड़के, क्यों? कुछ हिलना डुलना ही नहीं है, क्यों? बैठे हुए हैं, ये हिलना बन रहा है, ऐसे 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 ऐसे। हमारे मंदिर में एक लड़का आया था कॉलेज का, तो उसकी मेरी कोई थोड़ा हुई कि भाई नहीं आज के यंग लोग जो है वो कमज़ोर नहीं है। अरे हम तो बिल्कुल कमज़ोर है। मैंने कहा बेटे कमज़ोर तो हो तुम लोग। तो हमारे रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर की जो 2 एकड़ की ज़मीन है उसमें हमारी फिर दौड़ हुई और हमने 60% ही कवर किया था अभी। उसमें उसकी हालत ऐसी खस्ता हो गई थी। मैं को बाजी बेटा कितनी उम्र तुम्हारी? 23। पहले 23 साल के जवान आदमी की ये औकात है कि वो 2 एकड़ की ज़मीन की सर्कमफेरेंस को दौड़ कर कवर नहीं कर सकता, सीढ़ी बच जाती है उसकी। तो इसीलिए ये तो स्टेमिना का हाल है हमारे। तुम्बा हो जा रहे हैं, खाना पीना राजभोग और काम कुछ ना करना, हिलना डुलना, बैठे बैठे बैठे। अब तो शॉपिंग भी गई है, ब्लिंकिट वगैरह, ज़ेप्टो वगैरह आ गए। अब पहले कम से कम था नहीं, सीढ़ी उतर करके जाया करते थे, कुछ खरीद करके ले आएंगे। अब तो ये निकम्मेपन की और आदतें हमें, ये फैसिलिटी तो अमेरिका में भी नहीं है पर यहाँ को मिली हुई है। तो चलना फिरना भाई, शरीर हो रहे तुम्बा। जैसे बच्चों को जब फोन आजकल नीड भी है और कोई नीड नहीं है, ये इल्यूजन है। हाँ इल्यूजन है। हाँ। अब जैसे कभी हम बच्चों को पूछते हैं कि फोन में छोटा आपने कहा बटन वाला, तो वो बोलते हैं हम मर जाएंगे लेकिन ये फोन नहीं लेगा। तो वो बेटा तो तुम मर जाओ। ऐसे क्या माता पिता भी कमजोर हैं, माता पिता भी वीक हैं। अगर बच्चा बोलता है मैं घर छोड़ूंगा चला जाऊंगा मम्मी, बस उसमें हाथ पाँव ठंडे होते माता पिता। नहीं मेरे राजकुमार, मेरे युवराज, तू घर छोड़ के क्यों जाएगा, मेरा बच्चा है। दम नहीं है माता पिता के अंदर। हमने कभी अपनी माँ को बोला था ना मम्मी फिर मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मेरी माँ ने दरवाजा खोल दिया था। कहता बेटा निकल जा यहाँ से, और अगर तूने इसके बाहर पाँव रखा वापस नहीं आना, तो चप्पलों से इतना मारूंगी तेरे को मैं, वापस नहीं आना। अगर तूने बाहर पाँव रखा, जाना जा। जिगरा चाहिए इसके लिए। और एक बार हम निकल गए थे ना जब, तो इतनी चप्पलों के मार के अंदर लेकर गई थी, और कभी घर छोड़ने की बात नहीं बोली थी हमने उसके बाद। तो माता पिता में दम भी नहीं है। थोड़ा बच्चे बोलते मम्मी मैं घर छोड़ेगा चला जाऊंगा, बस उसी में ही हालत पतली हो जाती है। दम नहीं है माता पिता के अंदर, कमजोर है ये लोग। ये मुंह में ऐसे बिके हुए बच्चों के, अरे अरे अरे। तो इसीलिए कोई फोन नहीं देना, बटन वाला फोन भी नहीं देना इनको बटन वाला फोन भी नहीं देना। स्मार्टफोन तो दूर की बात ना, इनको म्यूजिक सिखाओ, लेट देम लर्न म्यूजिक, लेट देम लर्न सम लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ ये सिखाओ इनको, बजाय कि इनको फोन पकड़ा दें। क्यों? ताकि हमारे पास थोड़ा टाइम हो जाए। माता पिता क्यों देते फोन? बेसिकली कहता है ये पकड़ और हमको बख्श, ताकि हम भी जिए, हम भी तो जिए ना भाई। हैं बचपन इनकी पोटियां साफ की हैं, अब तो बख्श दो हमें। ले पकड़, ले कसम खाना कितना देना होते खो गया दा प्यो। तो अपनी लाइफ जीने के लिए उनकी लाइफ का बेड़ा गर्क मारते ना, नहीं करना। कोई फोन नहीं देना इनको, तड़पते रह जाएंगे, नो प्रॉब्लम। पर इनको डिसएडवांटेजेस बताओ फोन रखने की, और एडवांटेजेस बताओ फोन ना रखने की। यानी एजुकेशन भी देना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ तड़पता छोड़ दो इनको, नहीं ऐसा नहीं है। सो एजुकेट करो इनको एंड लेट देम लिव बाय दैट। पर माता पिता में दम नहीं है आज। ये मुंह में ऐसे कमजोर हो रखे हैं बच्चों के आगे, घुटने टेक देते हैं, थोड़ा सा क्या कूं कर दे बा, उसी में माता पिता बस पुत्र रोना नहीं है, रोना नहीं है, बस आजा मेरे कलेजे का टुकड़े, मैं बिगाड़ती हूँ तेरे को अच्छी, मैं तेरा बेड़ा गर्क मैं मारूंगी बेटा। ये है माता पिता भाई, कमजोर है, दम नहीं है लोगों के अंदर। स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए माता पिता के आगे, माता पिता को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए बच्चे के आगे।
यस, शिक्षा दो, दोस्ती करो, अरे चलो वॉक पे चलते हैं, नहीं फोन नहीं, चलो बैडमिंटन खेलेंगे यहाँ पे, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो चलो चलो, ये इससे करना चाहिए। इसको गली में से छोड़ के आओ, कहता घर पहुंच अपने आप, दम है करने का, नहीं प्रभु जी सादा पुत्र खो गया तो उठा के ले गया तो कुछ नहीं होता। हाँ तो घर ढूंढते ढूंढते आएगा, वो कहाँ पर है भाई, A3/4 कहाँ पर है पता करेगा, आएगा वो इस तरह से। करो उसको बोला भगवदगीता के तू 6 चैप्टर पढ़, 1 महीने बाद मैं तेरे से डिबेट करूंगा, मैं नास्तिक बनूंगा, तू आस्तिक बनियो, अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे कोई गिफ्ट दूंगा जो तू बोलेगा। वो गीता पढ़ेगा, नोट्स बनाएगा, पापा वो कहाँ कहाँ निपटाना मेरे को। ये करना चाहिए बच्चों के साथ, उसको चैलेंज करो उसको। यस, बजाय कि उसके घुटने टेके ताकि हम कुछ व्हाट्सएप कर सकें, हम कुछ नेटफ्लिक्स से पिक्चर देख लें, जिसको तू देख ALT बालाजी में देख ले, कोई बात नहीं। हम लोग कमजोर है, माता पिता मुंह में कमजोर हो, ये है रूट कॉज। हाँ जी, और बताओ माता जी। यस, कहाँ बोला दुर्गा देवी की उपासना के लिए? देखिए होता क्या है, अगर आप किसी भी देवी देवता की उपासना करते हो, पहली बात तो भगवान के कहने पे, तो वो भक्ति में काउंट होता है। ये भगवान ने बोला है, भगवान बोले भाई आप किसी शैतान की पूजा करके आओ, भगवान ने बोला है, तो आपकी आज्ञा सारा आपको पता। बाकी आप किसी देवी देवता से अगर कोई बेनिफिट लेते हो इसलिए ताकि आप कृष्ण की सेवा कर सको, तो फिर वो अल्टीमेटली सर्वधर्म परित्यज्य नहीं आता कि अल्टीमेटली क्यों कर रहे हैं हम, कृष्ण के लिए। जैसे मान लो आपको भूत पिशाच से बढ़ गया आपको, ठीक है जी, आप उसके लिए आपने किसी एग्जॉर्सिस्ट की हेल्प ली, क्योंकि आपके भजन में इतना दम तो है नहीं, आपने भजन किया, पता लगा वो बगल में बैठा हुआ था, हाँ हम भी करेंगे हरे कृष्ण, तो फिर तो हो गया। तो इसलिए कभी कभी एग्जॉर्सिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, पर किसके लिए, ताकि हम भजन अच्छे से कर सकें। अगर कोविड हुआ तो दवाई खाएंगे ना, मेडिसिन लेंगे ना, ये थोड़ी नहीं हरे कृष्णा करो, नहीं। पर हम कोविड की वैक्सीन क्यों ले रहे हैं, ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे, किसके लिए, भक्ति के लिए। तो अल्टीमेटली जो आपका लक्ष्य कृष्ण भक्ति है ना, फिर आप भले ही देवी देवताओं की हेल्प भी ले रहे हो, इट्स फाइन। आप देखो भागवतम में हम लोग क्या बोलते हैं, नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमम, फिर आगे देवीं सरस्वती। अरे सरस्वती की पूजा कर रहे हैं यार, डेमिगॉड वर्शिप। पर यहाँ सरस्वती से प्यार कर हमको भागवतम समझ में आ जाए, ये सीमेंट की बोरी में भागवतम जाता ही नहीं, वो सरस्वती मैया कृपा करें। तो अल्टीमेट लक्ष्य अगर आपका भक्ति है, तो फिर देवी देवताओं से आप भी जो मांगोगे वो भी भक्ति की ही अम्ब्रेला में काउंट होगा, ठीक है जी। इसलिए हाँ जी, और बताओ जी बालक। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जो हमारा मिथ्या अहंकार है, जैसे कभी ऐश्वर्य आते हैं जीवन में अपने, ये लो ये प्रभु जी, जैसे जीवन में कभी ऐश्वर्य आते हैं, धन आ जाता है या कुछ और किसी चीज़ के लिए प्रशंसा मिलती है, तो बहुत जल्दी अहंकार बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद जब ये ऐश्वर्य चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने दिखा दिया हमको कि हम एक्चुअली में क्या है। तो प्रभु जी, क्या इसका कुछ परमानेंट जैसे इलाज करना चाहते हैं कि परमानेंट अहंकार समाप्त हो जाए, और शब्दों में नहीं व्यवहार में भी, अंदर से भी, तो इसके लिए प्रभु जी और थोड़ा क्या स्पीडीली कुछ कर सकते हैं? देखिए भगवदगीता के अंदर ना एक चैप्टर है, वो है विभूति योग, राइट। पता है विभूति योग का पर्पस क्या, हमारे अहंकार को शांत करना। बुद्धिमान लोगों में बुद्धि कौन, मैं। शक्तिमान लोगों में शक्ति कौन, मैं। मनुष्य में सामर्थ्य कौन, मैं। तो कृष्ण बता रहे सारा सामर्थ्य तो उन्हीं से आ रहा है। तो अगर मान लो कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा स्केचिंग करता है, कोई अच्छी पेंटिंग करता है, कोई बड़ा बंदा बड़ा हैंडसम है, कोई बड़ी सुंदर है, कोई अच्छा कुकिंग करता है, अल्टीमेटली सारे सामर्थ्य कृष्ण से आ रहे हैं। तो भाई किस बात का घमंड, अपनी लाइफ देखें, हमारा क्या हालचाल है भाई, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, काय का घमंडवा भाई है क्या, झंडू राम आप लोग और क्या। तो इसीलिए अपनी असली औकात को जानते हुए कि भाई देखो हर व्यक्ति को ना अपनी असली औकात पता होती है, बाहर भले को चौड़ा होकर घूमे, अगर कुंभ में 65 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आए, कि बताता है सबको पता है उनकी हरकतें क्या है, राइट। नहीं तो 65 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आएंगे,
सबको पता है पाप किए हैं, दुनिया वालों को नहीं पता है। गंगा मैया जमुना मैया दो फटाफट। तो अपनी असली औकात तो सभी को पता होती है। प्राइवेट लाइफ में हम क्या है सबको पता होता है। पब्लिक में वी में पोज एज वेरी गुड डिवोटीज, हरे कृष्ण प्रभु जी। अंदर से हम लोग क्या पता है हमको। तो इसीलिए अपनी असली औकात को भी नहीं भूलना चाहिए, हम क्या हैं असल राइट। मेरे अपने पर्सनल हैबिट्स हैं, मेरे पर्सनल कुछ पैशंस हैं विच आर नॉन डिवोशनल हैं, और हमको पता होता है इस बारे में। तो घमंड गाएगा भाई, अपनी कमजोरी पे थोड़ा ध्यान दे लो, अपने आप से सेटल हो जाएगा। एंड वट एवर गुड वी हैव, हम ये बोले नहीं है, आप बोल तो रहे हो मैं ऐसे इतना अच्छा नहीं हूँ, नहीं मेरे में कहाँ है, अंदर होता नहीं है तो सही है। तो इसलिए इसको एडमिट करें, हाँ ये मेरे में अच्छी क्वालिटी है, बट दिस गुड क्वालिटी इज कमिंग फ्रॉम कृष्ण। तो इसलिए वो डोटेल करना जरूरी है कि मेरे में जो अच्छा है वो कृष्ण से। सो वट एवर फेम आई हैव इज बिकॉज ऑफ गुरु। ठीक है जी, वट एवर वेल्थ इज देयर इज बिकॉज ऑफ विष्णु, एंड ऑल द वेल विशर्स आर देयर बिकॉज ऑफ कृष्ण। ये सोच के चलना चाहिए। तो इसे डेडिकेट करना, जैसे बल्ब है ना, बल्ब चौड़ा नहीं हो सकता। देखो हम कमरे को रोशन कर रहे हैं, नहीं स्विच ऑफ कर देना, स्विच को ऑफ कर देना, अब जल क्या जलेंगे जी। जैसे मायापुर में ना जो बैलगाड़ी निकलती है, बैलगाड़ी में गौनिताई होते हैं और आगे फिर सांड होते हैं राइट। और जितने लोग जय गौनिताई जय गौनिताई जय हो उसको प्रणाम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में सांड लगे, वाह भाई झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, टुन्ना टुन्ना क्या बे टुन्ना, ये तेरे को प्रणाम नहीं कर रहे हैं क्योंकि तेरी बैलगाड़ी में कौन बैठे हैं, गौनिताई, इसलिए तेरे आगे लोग झुक रहे हैं। उनको हटा देंगे ना तो गली के सांड और तेरे सांड होने में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से हम भी सांड ही हैं, लेकिन क्योंकि हमारी बैलगाड़ी में श्री गौनिताई है, हमारे बैलगाड़ी में श्रील प्रभुपाद जी हैं, तो लोग हमारी तारीफ करते हैं, प्रभु जी आओ कितना ये ना वो ना, प्रभु जी आपने हमारी लाइफ बदल दी, प्रभु जी ओ प्रभु जी ये, ओ प्रभु जी वो, अरे ये अरे वो। सांड है, गली के सांड है, गोबर हगने वाले सांड हैं, क्या औकात हमारी। लेकिन क्योंकि हमारी बैलगाड़ी बैठे गौनिताई जी राधा कृष्ण, तो इससे हमारी जय जयकार हो जाती है। अच्छा, तो इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए हम सांड हैं। यस, फिर आपको कभी अहंकार नहीं होगा। ठीक है जी, आखिरी सवाल, आप केक कटिंग भी करनी है भाई राइट। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा हाउ डज इट इम्पैक्ट आवर लाइफ एज अ डिवोटी। यस, हमारी रियल इंटेलिजेंस वो खप गई क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई लाइफ में। चैट जीपीटी इतना निकम्मा बना दिया सबको, सब मिल जाता है उसमें। बच्चे तो होमवर्क भी कर रहे हैं, हाँ सीरी जय श्री राम। तो इसलिए जो है ये इन सबसे बल्कि हम लोग निकम्मे बन रहे हैं। पहले लोग पढ़ा करते थे, आपको पढ़ता ही नहीं है। जो पता करता है चैट जीपीटी वाला, वो पूरा पैराग्राफ बना करके सिस्टमैटिकली बुलेट पॉइंट्स करके आपको देता है। नो सो सब ऐसे परोस के दे देंगे तो फिर ये तो गया काम से। जैसे मैंने ना, अब पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे और चौक से टीचर लिखा करती थी, और हम ना दिमाग चलाते थे, अच्छा ये जो लिखा ये वो है, अच्छा एक्स का ये वाई और ये जेड, अच्छा वो ये तो दिमाग चलता था। फिर आगे स्मार्ट क्लासेस, तो स्मार्ट क्लासेस में क्या, यहाँ पर ग्राफिक्स कर दिए सारे। अब ग्राफिक्स यहाँ प्रोसेस नहीं होते, ग्राफिक्स तो यहीं हो जाते हैं, तो उससे दिमाग और कमजोर हुआ। अब चैट जीपीटी ने कहा अरे सर आपको वो भी नहीं करना है, सब परोसे दे देंगे हम आपको। तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन्स और डल बन रहे हैं। तो ब्रेन डल बनेंगे, साथ साथ हमारी ह्यूमन इंटरेक्शन भी होती है, क्योंकि हमको अक्ल ही नहीं किसको क्या बोलना है किसको क्या नहीं बोलना है। आज रिश्तों खराब क्या करते हैं, शब्द। पत्नी को अकल नहीं पति से क्या बोलने का है, पति को भी अकल नहीं पत्नी से क्या बात करने की है। तो क्योंकि हम लोग एक एबनॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और आजकल हो क्या रहा है, क्योंकि फेमिनिज्म का जो कीड़ा चढ़ा हुआ है, लड़कियों बोलते कम ऑन कर दिखाओ, तुम भी पुरुषों से आगे निकल सकती हो, कर लोगी तुम, क्या समझते हैं ये मर्द। लड़कियां जो है नाउ लीविंग बिहाइंड देयर फेमिनाइन क्वालिटीज आर नाउ कॉम्पिटिंग विद मेन विद मोर मेन लाइक क्वालिटीज। तो एक्चुअली आज जो शादियां हो रही हैं वो दो मर्दों की हो रही हैं। एक तो है आदमी ही है, और दूसरा जो है बाहर से हार्डवेयर से वो फीमेल है लेकिन अंदर उसके मर्दा है। दो मर्दों की शादी है असल में।
इससे शादी टिकती नहीं है। इसका फिर वर्स्ट केस ये है, लड़के फेमिनाइन हो रहे हैं, लड़कों के अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज नहीं है, वो हेयर बैंड भी लगा रहे हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर भी करा रहे हैं, आईब्रोज भी करा रहे हैं, ये थोड़ा इसमें थोड़ा ठीक। तो लड़के बाहर से मैस्कुलिन है, अंदर से वो एक स्त्री है, और स्त्री बाहर से वैसे स्त्री है लेकिन अंदर वो पुरुष है। इनकी शादी हुई है तभी से आप पे मचे हुए हैं, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में मैचिंग ही नहीं है। और इनका फिर हमने मैचिंग करा दी, हाँ इनके 26 गुण मैच होते हैं, उनका 36 का आंकड़ा निकला उनका आपस में, तो इसीलिए तो इसलिए हो रहा बिकॉज आवर ह्यूमन इंटरेक्शंस आर गोइंग अवे फ्रॉम नेचर। जितना हम भगवान की प्रकृति से दूर जाएंगे उतना हम एबनॉर्मल हो जाएंगे। तो प्रकृति के हमें पास जाना है, तो चैट जीपीटी एटसेट्रा ये सबसे दूर रहना है। पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, पेन पेपर यस लेकर गया, फाउंटेन में ना देना वो लेकर गया है, वो उससे नोट्स बनाए लिखे। प्रभु जी जैसे आप ये चीज़ बोल रहे हैं ना कि दिमाग, अब अगर सपोज करिए मैं हूँ और मैं अपना दिमाग लगा के एक आर्टिकल लिख रही हूँ ऑफिस के लिए, अब दूसरा है वो चैट जीपीटी से, तो उसकी वो कैब, उसके वर्ड्स जो ऐसे हाई फाई होता है वो इतना अच्छा लिखेगा, तो फिर ऐसे में हमें क्या, तो हम वो कैब क्यों नहीं अच्छी कर सकते? मतलब कितना भी कर लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, आप क्या करो, देखो मैं बताऊँ क्या करना चाहिए आपको। आप ना अच्छे से खुद एक आर्टिकल लिखो, उसको डालो आप ग्रामरली में। ग्रामरली क्या करेगा, आपको बताएंगे कौन कौन सी जगह पे अच्छे अच्छे शब्द आ सकते हैं। चैट जीपीटी क्या करता है, आपके अंदर निकम्मापन लेकर के आता है, और बेसिकली आपको वो सारा लिखना खुद है, पर ग्रामरली से आप उसके अंदर ऑर्नामेंटल शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी खुद सीखे ना, कौन कौन से प्रोवर्ब्स होते हैं, कौन कौन से इडियम्स होते हैं, हम याद करेंगे ना, हम याद करते नहीं, कहते हाँ कौन करेगा, वो खुद ही करके दे देगा वो। जी प्रभु जी जैसे हम मिलेनियल्स हैं, हमने ये टाइम देखा है कि एक अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन अब जो ये जेनजी आ रहा है या जेन अल्फा, तो इन लोगों को तो हम लोग इतना कैसे 15 साल पीछे का वो नहीं, ये 15 साल आगे है नहीं, पिछड़े हुए लोग हैं असल में, इनमें कुछ भी नहीं है, खोखला है हिसाब किताब इनका। तो इसलिए हमें इनको सब्सटैंशियल व्यक्ति बनाना है। कैसे? बाय लेटिंग देम लर्न, लेटिंग देम डू हार्ड वर्क, कराओ इनसे मेहनत। लगेगा कि पीछे जा रहे, पर ऐसे पीछे नहीं है, कैपेबल है। मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल है। Okay, now let's go for cake cutting. कहाँ है बर्थडे बॉय, कहाँ है बर्थडे बॉय, बॉय 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 बॉय, कहाँ है बर्थडे बॉय। आया भाई, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग नहीं है सुनहरा, ये झील सी गहरी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। गौरंगा कौन सा केक खिला रहे हो? स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, पाइनएप्पल, वनीला, ग्रेप्स, वाह। भज गौरांगो कहो गौरांगो, काटो गौरंग के नाम का केक रे। वाह जी वाह, सब आ जाओ जी एवरीवन। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, कृष्णा कृष्णा टू यू, हरे हरे टू यू, हरे रामा टू यू, हरे रामा टू यू, राम रामा टू यू, हरे हरे टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, कृष्ण कृष्णा टू यू, हरे हरे टू यू, हरे रामा टू यू, हरे रामा टू यू, राम रामा टू यू, हरे हरे टू यू, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा
करते हैं हमारे छोटे बच्चे के लिए कि श्री गौरंग महाप्रभु की कृपा इस पर हमेशा बनी रहे, उसका जीवन स्वस्थमय रहे, भक्तिमय रहे, मंगलमय रहे, इसके जीवन में ढेर सारा हरि का नाम हो, ढेर सारा हरि के भक्तों का संग हो, ढेर सारा हरि का प्रसाद हो, बहुत सारे जन्मदिन हो लेकिन दोबारा संसार में जन्म ना हो। We pray for him by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Wishing our very dear Gauranga very Krishna conscious birthday.